हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हमें सीखना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। और सर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि पेपर में आएगा ही आएगा, गारंटेड है इसका। सर, अभी तक हमने बैड डेब्ट की स्टार्टिंग कर दी है। बैड डेब्ट में हमारा 3 पॉइंट रहेंगे: बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर। बैड डेब्ट कंप्लीट हो चुका है, बैड डेब्ट के साथ बैड डेब्ट रिकवर भी कंप्लीट हो गया है। अब स्टार्ट कर रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो उसके बारे में थोड़ा लिखते हैं। सर, पहला पॉइंट लिखेंगे, पहले बोलेंगे कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट is followed while preparing the final account. While preparing the final account. Second point, sir. Second point. इसके आगे लिखना this mean expected losses are recorded. Expected losses are recorded. Expected losses are recorded. It means expected losses are recorded while expected income are not recorded. While expected income are not recorded. While expected income are not recorded. Incomes are not recorded. Expected. Okay. Thus the applying the prudence concept. Applying the prudence concept. Thus applying the prudence concept. Thus applying the prudence concept. Provision for such expected provision for such expected bad debt. Provision for such expected bad debt is made every year. Is made every year. Is made every year. दोस्तों, ये कह रहा है कि देखो, applying the prudence concept provision for such expected bad debt is made every year. ठीक है सर। The entry for creating provision. The entry for creating provision is entries creating provision is क्या एंट्री होगी मेरे दोस्तों? एंट्री होगी प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। आज की क्लास लंबी होने वाली मेरे दोस्तों, आज की क्लास लंबी होने वाली है। ठीक है सर, आगे लिखते हैं आगे। और फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, द अमाउंट डेबिटेड टू पी&एल अकाउंट। अमाउंट डेबिटेड टू पी&एल अकाउंट। द अमाउंट डेबिटेड टू पी&एल अकाउंट reduce current year profit. Reduce current year profit. Reduce current year profit. And the amount of provision and the amount of provision and the amount of provision
and the amount of provision is carried forward, and the amount of provision is carried forward to the next year, to the next year. तो मैं सारा बताऊंगा सर, सारा बताऊंगा, बस पहले आप लिखते चले साथ साथ. नेक्स्ट ईयर when debt actually become bad debt, and debt actually become bad debt, when debt actually become bad debt, and are written off, the amount of bad debt, is debited to the provision for doubtful debt, account, and the amount of bad debt is not debited. The amount of bad debt is not debited to the P&L account, not debited है, डेबिट नहीं करेंगे P&L अकाउंट के अंदर, since it was already debited in earlier year. It was already debited in earlier year. It should be noted that the customer account or sundry debtor, sundry debtors account is not affected by making the provision for doubtful debt, by making the provision for doubtful debt. भाई आगे सर लास्ट पॉइंट है 8, और मैं सारी बातें आपको पढ़ाऊंगा, बस पहले तो मुझे पूरा कंसेप्ट समझाना है, उसके बाद मैं आपको सारी बात, मैं पूरी लास्ट जब क्लास का एंड हो जाएगा नहीं तब जाकर मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, पहले जब क्लास का एंड हो जाएगा ना तब जाकर पढ़ाऊंगा. दोस्तों ध्यान सुनिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्योंकि अभी समझ में आएगा नहीं, क्योंकि मैंने एंड तक की बातें डाल दी यहाँ पर. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट account is deducted. Provision for doubtful debt account is deducted from the amount of sundry debtor, debtors in the balance sheet, but two separate accounts are maintained. Two separate accounts are maintained. लो भाई, नोटिंग वोटिंग सब खत्म हो गई दोस्तों, बस अब स्टार्टिंग करते हैं कंसेप्ट को समझने के लिए. चलो भाई, तो ध्यान समझते रहना.
सर ध्यान समझना कॉन्सेप्ट क्या कहता है। सर मान लेते हैं हम है ऑनर, सर मान लेते हैं हम ऑनर है और हमने क्या करा भाई, माल बेचा था, सेल करी थी ऑन क्रेडिट में, उधार पर। सर डिटेल में कराने वाला हूं मैं इस बार, क्योंकि मुझे लगता नहीं है आपने कभी डिटेल पढ़ा होगा। सेल ऑन क्रेडिट 50,000 रुपए का माल उधार पे बेचा टू मिस्टर ए को। अब मिस्टर ए कौन बन गए जी? मिस्टर ए हमारे डेटर बन गए हैं, क्योंकि हमने माल उधार पर बेचा है। ये बात तो क्लियर है। मिस्टर ए हमारे क्या बन गए? डेटर। मिस्टर ए हमारे डेटर बन गए, क्योंकि हमने माल को क्या बेचा? उधार पर बेचा है दोस्तों, माल को उधार पर बेचा। मिस्टर ए हमारे डेटर बन गए। अब मिस्टर ए जो डेटर है हमारे, अब ये क्रेडिट पीरियड जो था, इनको जो पैसा देना था वो देना था 2 महीने बाद। क्रेडिट पीरियड कितना था? 2 महीने बाद क्रेडिट पीरियड, 2 महीने का क्रेडिट पीरियड था भाई। 2 महीने हो चुके। अब आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 2 मंथ जब पैसा देने की बात आई तो मिस्टर ए थोड़ा कहने लगे, सर बाद में दे देंगे पैसे, अभी नहीं देना, बाद में ले लेना, बाद में ले लेना पैसे, अभी है नहीं, अभी है नहीं। तो ऐसा कहकर क्या बोल दिया भाई, ऑनर को बोल दिया कि बाद में ले लेना भाई, अभी हमारे पास पैसे है नहीं, तो अभी है नहीं तो दे नहीं पाएंगे, बाद में आपको पक्का दे देंगे, तो गारंटी है, पक्का 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 दे देंगे, पक्का पक्का पक्का, कच्चा पक्का 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 कच्चा पक्का सब दे देंगे सर, आप टेंशन मत लो। अब भाई हम कुछ टाइम फिर बाद गए, ऑनर फिर गया मिस्टर ए के पास, उन्होंने कहा कि भाई पैसे वैसे दे दो यार, काफी टाइम हो गया, 2 से 4 महीने हो गए, आप तो पैसे दे दो क्या? सर बाद में ले लेना ना, सर बाद में। फिर 2 महीने बाद गया तो कह रहा है कि भाई देखो बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मुझको पैसा चाहिए, 50,000 रुपए कम नहीं होते, पैसा दे दो। मिस्टर ए ने कहा सर बाद में ले लेना ना, बाद में। फिर 2 महीने और बाद गया तो 8 महीने हो गए, तो 8 महीने के बाद गए मिस्टर ए के पास, मिस्टर ए से बोला भाई पैसे दे दो, अब तो बहुत टाइम हो गया, 8 महीने हो चुके हैं, सर बाद में ले लेना, सर बाद में। तो मिस्टर ए बार बार टाले जा रहे हैं, क्योंकि उनका मन या तो नहीं है पैसे देने का, या उनके पास है नहीं। 2 चीजें हो सकती है, मिस्टर ए का या तो मन नहीं है पैसे देने का, या उसके पास है ही नहीं, अभी देना तो चाहता है पर है नहीं। दूसरा केस हो सकता है कि है ही, देना है तो सही पर देना नहीं चाहता। 2 केस हो सकते हैं ना। मिस्टर ए के माइंड में क्या चल रहा होगा, पैसे देना तो चाहता है दोस्तों, पर है नहीं उसके पास अभी, जब होंगे तब दे देगा। और दूसरा, तभी टाल रहा है इतनी देर से, 8 महीने से, या पैसे तो है पर देना नहीं चाहता। तो या तो ये हो सकता है दोस्तों, ऑनर को लगा कि यार काफी टाइम हो चुका, अब तो 8 महीने बीत चुके हैं, और 8 महीने बीतने के बाद जब मांगने गया तो बार बार टाले जा रहा था, तो ऑनर को लगा, मुझे लगता है कि मिस्टर ए अब पैसा मेरा नहीं देंगे, लगता है, यकीन नहीं है, लगता है। ऑनर को लग रहा है, ऑनर को क्या लग रहा है, ऑनर को लग रहा है कि अब मिस्टर ए, अब मिस्टर ए, ऑनर को लग रहा है, ऑनर को लग रहा है कि अब मिस्टर ए पैसे नहीं देंगे। लग रहा है दोस्तों, यकीन नहीं है, लग रहा है। इसमें और यकीन में बहुत फर्क है। अगर आप ये 2 फर्क सीख गए ना, तभी वो प्रोविजन और एक्चुअल बेटर में समझ में आएगा। ऑनर को लग रहा है कि अब मिस्टर ए पैसा नहीं देंगे, अब आने वाला नहीं है फ्यूचर में पैसा, बहुत टाइम हो चुका है, बहुत मांग चुका हूं, अब लग रहा है कि अब नहीं आएगा भाई, अब तो बस खत्म ही करो, अब आना है ही नहीं। तो भाई ऐसा लगा मिस्टर ए को, और मिस्टर ए ने, ऑनर ने क्या करा, ऑनर को कहा कि यार मुझे लगता है फ्यूचर में पैसा नहीं आएगा, फ्यूचर में मुझे पक्का लॉस होने वाला है। अभी लॉस नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, टाइम है, अभी मैं मांगू तो क्या पता दे दे, पर फ्यूचर में मुझे लॉस अराइज हो सकता है इससे। फ्यूचर में 50,000 का पैसा, 50,000 का लॉस अराइज हो सकता है। अभी लॉस नहीं हुआ, लॉस अराइज हो सकता है, लॉस अराइज हो सकता है दोस्तों, फ्यूचर में लॉस अराइज हो सकता है। अभी लॉस नहीं हुआ, अभी लॉस कब होगा, जब एक्चुअली बेटर होगा, डेटर ये कह दे कि भाई मैं दूंगा ही नहीं, जो करता है कर ले। अभी वो टाल रहा है दोस्तों, अभी वो टाल रहा है और कह रहा है कि दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा, और ऐसे ऐसे करके 8 महीने निकाल दिए।
मुझे लग रहा है, ऑनर को लग रहा है कि अब मेरा पैसा फ्यूचर में नहीं आने वाला, लग रहा है कि फ्यूचर में मेरा पैसा, मेरे को लॉस हो सकता है। क्या लग रहा है कि फ्यूचर में 50,000 का लॉस हो सकता है। 50,000 का क्या हो सकता है दोस्तों? 50,000 का लॉस हो सकता है। इसलिए एक कॉन्सेप्ट था प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म बोलो या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलो या प्रूडेंस प्रिंसिपल बोलो, जो भी नाम से, वट एवर नेम कॉल्ड, जो भी नाम से आप बोले। तो भाई प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है फ्यूचर में होने वाले लॉसेस अगर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो तो उस लॉस को आज ही मान लो। क्या कहता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट? कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आज मान लेना, क्योंकि फ्यूचर में अगर लॉस होगा और उस टाइम पैसा नहीं है रिकवर करने के लिए, आज आपके पास पैसा है रिकवर करने के लिए उस लॉस को, तो रिकवर कर लो भाई। फ्यूचर का लॉस को करंट ईयर में ही रिकवर कर लो। ये मत देखना कि फ्यूचर में जब लॉस होगा तब जाकर रिकवर करूंगा, आज ही लॉस मान लो, आज ही लॉस मान लो, ऐसा कहता है हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। और जब प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है ना दोस्तों, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होता है फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होते हैं बाय प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। all final account prepared by the prudence concept, prepared as per prudence concept, all final account prepare as per prudence principle या फिर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, जो भी नाम से आप बोलो, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फॉलो करता है और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है देखो अगर आपको लग रहा है ना कि फ्यूचर में लॉस होगा, अगर यकीन है तो बैड डेट है दोस्तों, बट अगर लग रहा है ना कि फ्यूचर में लॉस होगा तो उस लॉस को आज मान लेना। अगर फ्यूचर में लग रहा है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है फ्यूचर के होने वाले लॉसेस को आज मान लो, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को क्या मान लो, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आज मान लो, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आज मान लो दोस्तों। तो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आज मान लो, तो ऐसा कहता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। और ये फ्यूचर में लॉस होगा, देखो एक्चुअल और फ्यूचर का लॉस डिफाइन करो, समझो। अब ये लग रहा है कि मेरे को ये आगे जाकर पैसा नहीं देगा, ऐसा लग रहा है। जब यकीन हो जाता है ना दोस्तों तब बैड डेट कहते हैं। जब लग रहा है ना कि यार आगे जाकर बैड डेट हो सकता है, तो आज नहीं हुआ बैड डेट, आगे जाकर होगा, फ्यूचर में बैड डेट, लॉस आगे जाकर होगा, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं फाइनल अकाउंट में। और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आज मान लो, पर फ्यूचर की इनकम को आज नहीं मानना। इनकम को थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। आप सोचो मैंने एक बिजनेस खोला और मैंने कहा कि मैं सपने देख रहा हूं और मैंने कहा देखो फ्यूचर में होने वाली इनकम को आज मान लो, तो फ्यूचर में मैं 100 करोड़ कमाऊंगा, आज मान लिया 100 करोड़ कमा लिया भाई, फ्यूचर में कमाऊंगा, खुश हो गया। नहीं दोस्तों, इनकम को थोड़ा एक्सपेक्टेशन करते हैं। सोचो ना, आप आज आप बिजनेस खोलोगे तो ये एक्सेप्ट कर लोगे कि फ्यूचर में 100 करोड़ कमाऊंगा तो आज खुशी मना लोगे क्या? बट नहीं, फ्यूचर में आपको अगर लॉस होगा तो आज उस लॉस को रिकवर करने की सोचोगे, आप कहोगे यार अभी कर लो, फ्यूचर में तो क्या पता पैसा ना रहे तो कैसे करूंगा। तो फ्यूचर में होने वाली लॉसेस को आज ही मान लो, ऐसा कहता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। और इसलिए कहा कि देखो जो आपका 50,000 अभी बैड डेट नहीं है पर फ्यूचर में होगा, इसलिए उसको आज लॉस मान लेना। और आज जब आप लॉस मानोगे तो उस लॉस को रिकॉर्ड करना प्रोविजन के नाम से, इस लॉस को रिकॉर्ड करना, उस लॉस को रिकॉर्ड करना प्रोविजन के नाम से दोस्तों। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, डेब्ट मतलब होते हैं डेटर, डेब्ट मतलब क्या होते हैं? डेटर, जिनसे पैसा लेना होता है। डाउटफुल डेब्ट, क्योंकि डाउट है, अभी बैड डेट नहीं हुआ दोस्तों, क्या हुआ? डाउट है। तो डाउट है तो उसके लिए प्रोविजन बना लो और इसको आज ही लॉस मानकर पीएनएल अकाउंट के अंदर डेबिट कर देना। सोचो, मैंने कहा एक डब्बा है दोस्तों मेरे पास, उस डब्बे के अंदर मेरे 1 लाख का प्रॉफिट पड़ा हुआ है। अब मैंने ये 50,000 का लॉस मैंने उसके अंदर डब्बे के अंदर डाला, तो लॉस जब 1 लाख का प्रॉफिट था, मैंने 50,000 का लॉस जैसे डाला तो प्रॉफिट बढ़ गया या कम हो गया दोस्तों? सर कम हो गया, नॉर्मल सी बात है। 1 लाख का प्रॉफिट था, 50,000 का मेरे फ्यूचर में लॉस होगा, उसको मैंने आज ही मान लिया एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो 1 लाख के प्रॉफिट में जब 50,000 का लॉस हटाया तो नेट प्रॉफिट कितना बच गया दोस्तों? 50,000। दोस्तों अगर मैंने कहा 15 लाख का प्रॉफिट है मेरे पास और मेरे को लॉस, फ्यूचर में होने वाले लॉस को आज मान लो, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्या बोलते हैं? फ्यूचर में होने वाले लॉस को, डेटर का लॉस जो फ्यूचर में होगा, बैड डेट होगा, उसको आज ही मान ले। और आज बैड डेट रिकॉर्ड नहीं करना, बैड डेट जब होगा तब, जब ये एक्चुअल हो सकता है। प्रोविजन बनाने का मतलब ये नहीं है कि यकीन हो गया, प्रोविजन बनाने का मतलब है ये कि लग रहा है कि फ्यूचर में लॉस होगा, क्या पता पैसा दे दे,
क्या पता मेरे दोस्तों पैसा दे दे, ऐसा भी तो हो सकता है कि पैसा दे दे या दे ही ना। तो जब फ्यूचर में पता चलेगा कि पैसा दिया या नहीं दिया, तब वहां पर मानना है बैड डेट और नहीं। आ रहा समझ में? तो आज मैंने आपका पैसा देना था, मैं आपको टाले जा रहा हूं, आपको लग रहा है ये पैसा नहीं देने वाला, पर मेरा है कि मैं दे दूंगा, मेरा मन है मैं दूंगा, जब पैसा होगा मेरे पे, आपको लग रहा है, तो लगने से नहीं चलेगा, जब यकीन होगा तभी बैड डेट मानना है। तो मैंने आपने मेरे से आए पूछते मैंने डाल दिया, आपने प्रोविजन मान के खत्म कर दिया, कहा ये मुझे लगता है दे देगा, दे देगा होगा, दे देगा, नहीं देना होगा ना सही। अब मुझे लगता है मैंने लॉस तो मान ही लिया अब इसको। अब मैंने आगे जाकर ना आपको क्या करा, आपको कहा कि ये लो भाई 50,000 रुपए देने थे ना, 25,000 कैश पकड़ो, 25,000 दूंगा ही नहीं, मेरे पे है ही नहीं पैसा, 25,000 बड़ी मुश्किल से करा है। तो आपने क्या करा, आपने 50 को लॉस मान लिया दोस्तों। अब वो 25,000 जो आपको 50 में से 25 मिल गए, 25 का क्या हो गया, अब दे गए नहीं, तो वो 25 बैड डेट बन गया और बाकी 25 मिल गया। अब दो जो लॉस माना था 50 में से 25 में निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे वो बात की बात। अभी समझ में आया कि फ्यूचर में जब बैड डेट होगा एक्चुअली तभी हम इसको राइट ऑफ करेंगे, अदरवाइज अभी तो सिर्फ क्या है, इमेजिनरी अकाउंट बना रहा हूं एक तरीके का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्या बात समझ में आ गई? और सर जब प्रोविजन पीएनएल अकाउंट के अंदर डेबिट करूंगा तो बताओ प्रोविजन प्रॉफिट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बताओ मेरे दोस्तों, प्रॉफिट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? सर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो प्रॉफिट को कम करते हैं उसका अपना नेचर होता है क्रेडिट। तो बताओ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट प्रॉफिट को बढ़ा देगा या कम कर देगा? सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या है, एक लॉस है जो फ्यूचर में होगा, आज मान लिया प्रूडेंट कांसेप्ट के हिसाब से, तो फ्यूचर में होने वाले लॉस को आज माना, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और प्रॉफिट कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पीएनएल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा सर, क्योंकि पीएनएल अकाउंट को डेबिट करूंगा तभी तो प्रॉफिट कम होगा। सारे लॉस अगर डेबिट साइड भेजूंगा तो प्रॉफिट कम होगा। तो ये मेरा लॉस मानकर पीएनएल अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया। इससे क्या होगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करते हैं, घटाने के लिए डेबिट करते हैं। और जो चीज प्रॉफिट को घटा दे, दोस्तों उसका अपना नेचर होता है क्रेडिट, उसका अपना नेचर होता है क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सॉरी। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का नेचर क्या होगा दोस्तों, हमेशा क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि प्रोविजन क्या एक तरीके का पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है, जो क्या कर देता है दोस्तों, जो प्रॉफिट को कम कर देता है। तो प्रॉफिट तो कम कर दिया, प्रॉफिट तो कम करके डेबिट कर दिया, पर किसकी वजह से डेबिट हुआ है? सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की वजह से डेबिट हुआ है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की वजह से डेबिट हुआ है। अगर मैंने कहा कि अगर आप ये पीएल अकाउंट में पोस्टिंग करोगे तो कैसे करोगे, तो आप कहोगे सर बताओ, आप जब पीएल अकाउंट बनाओगे ना दोस्तों, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते टाइम ना यहाँ पर क्या लिखोगे, अब यहाँ पर बैड डेट नहीं लिखोगे दोस्तों, क्योंकि अभी बैड डेट नहीं हुआ, अभी तो बस डाउट है, तो मैंने लॉस मान लिया फ्यूचर में, तो मैं यहाँ लिख दूंगा क्या, बैड डेट लिखूं या प्रोविजन लिखूं? सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या हो जाएगा सर, ये सर डेबिट इफेक्ट हो गया। और डेबिट इफेक्ट हो गया तो बताओ अकाउंट से एंट्री पास करने आती है, पीएनएल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, किसकी वजह से, टू प्रोविजन, तो एंट्री होगी पीएनएल टू प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। आना जाएगा यहीं से कराया था मैंने, चलो देखना पड़ेगा। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म बोलो या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलो इज फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनाते टाइम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को फॉलो करा जाता है दोस्तों। दिस मीन एक्सपेक्टेड लॉसेस आर रिकॉर्डेड व्हाइल एक्सपेक्टेड इनकम आर नॉट रिकॉर्डेड। लॉसेस को तो रिकॉर्ड करेंगे, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को तो आज मानकर रिकॉर्ड कर देंगे, पर फ्यूचर में होने वाली इनकम को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बेसिक की क्लास में आपने पक्का सीखा है। Thus, applying the prudence concept to provision for such expected bad debt is made every year. आपको लग रहा है expected bad debt है, कि लग रहा है कि फ्यूचर में bad debt हो जाएगा, इसलिए हर साल उसके लिए क्या करो, एक प्रोविजन बना लो। और जब हम प्रोविजन बनाएंगे तो बताओ प्रॉफिट बढ़ा देगा या कम कर देगा? सर प्रॉफिट को कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, और डेबिट करने की वजह था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसलिए इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया मेरे दोस्तों। आगे अगर आप पढ़ोगे तो मैंने लिखा है द अमाउंट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, वो अमाउंट जो डेबिट करेंगे पीएनएल अकाउंट में रिड्यूस द करंट ईयर प्रॉफिट। बिल्कुल सही है या नहीं है? एंड द अमाउंट प्रोविजन इज कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, और ये नेक्स्ट ईयर में चले जाएगा। और जब ये नेक्स्ट ईयर में जाएगा तो अभी तो डेबिट हुआ है, नेक्स्ट ईयर में जाकर क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस पोस्टिंग होती है दोस्तों। एक साल से जब दूसरे साल ट्रांसफर होता है तो क्रॉस पोस्टिंग होती है, डेबिट साइड में होगा तो क्रेडिट में जाएगा। आपने अगर आपने डेप्रिसिएशन कभी सीखा है, मशीनरी अकाउंट बन के बनाया है, तो मशीनरी अकाउंट में जब बैलेंस शीट ही बचता था क्रेडिट साइड में, तो क्या करते थे, उसको डेबिट साइड में भेजकर बीडी करते थे, नहीं
करते थे। बताओ जब भी बैलेंस सीडी बचता था क्रेडिट साइड में तो बीडी भेज देते ना, तो अगले साल भेजते वक्त क्रॉस पोस्टिंग होती है। तो ये प्रोविजन फॉर कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर जब चले जाएगा और जब तक जाता रहेगा जब तक एक्चुअल बैडअप ना हो जाए, जब तक दोस्तों एक्चुअल बैडअप ना हो जाए उसको अगले साल क्यों भेजेंगे, अब इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, बस बाकी की बात क्या है वो आगे समझाऊंगा। क्या ये एग्जांपल पूरा समझ में आया, क्या ये एंट्री समझ में आई? तो ये प्रोविजन मैं अगले साल क्या भेज दूंगा, कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा नेक्स्ट ईयर, और जब तक कैरी फॉरवर्ड करता रहूंगा जब तक एक्चुअल में या तो बैडअप ना हो जाए या तो पैसे ना आ जाए। तो ये कंडीशन हो सकती है। अभी तो बस लॉस माना है, एक्चुअल में अगर बैटअप हो जाएगा तो लॉस तो पहले ही मान चुके हैं, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते वक्त हम करेंगे। पर अगर बैटअप ना हो पैसा दे दे तो फिर इनकम मान लूंगा। तो वही तो कह रहा हूं, करेक्ट साइड में भेज देंगे दोस्तों उसको। अगर ये बातें अगर समझ में आई आपके, तो मैं अब आपको एक कॉन्सेप्ट की मदद से, क्वेश्चन की मदद से कॉन्सेप्ट को समझाने की और कोशिश करता हूं, और जैसे जैसे मेरे क्वेश्चन खत्म होते चले जाएंगे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होती चली जाएगी। ठीक है, अभी तो बस एक टच दिया है कि क्या प्रोविजन है, क्या एक ओवरव्यू है। जब तक मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्लियरिटी आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी। तो क्वेश्चन के हिसाब से करते करते एग्जांपल करते हैं और क्लियरिटी के साथ समझते हैं प्रोविजन के कंसेप्ट को। लो भाई लो, तो मैंने एग्जांपल देने हैं। सबसे पहले सर एग्जांपल देने से पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाना चाहता हूं, वो जरूर लिखिए आप, तभी हम एग्जांपल कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट लिखेंगे, इफ द अमाउंट ऑफ प्रोविजन, if the amount of the provision for doubtful debt, if the amount of the provision for doubtful debt, if the amount of the provision for the doubtful debt is given on credit side, is given on credit side of trial balance, credit side of trial balance is given on credit side of trial balance, क्योंकि क्रेडिट नेचर का होता है प्रोविजन। अगर अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट साइड में गिवन है पहले से, देन फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू it is known as old provision, it is known as old provision, दोस्तों अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस के अंदर पहले से कुछ प्रोविजन शो हो रहा है क्रेडिट साइड में, तो उसको हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं ओल्ड प्रोविजन। याद रहेगी नहीं आएगी बात, उसको हम क्या बोलेंगे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ओल्ड प्रोविजन। कब बोलेंगे, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर पहले से क्रेडिट साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिख रहा है। इफ एडिशनल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, if the additional provision for doubtful debt is made for the current year, अगर आपने करंट ईयर में और प्रोविजन बनाया है, then from the accounting point of view, बताओ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसका क्या नाम होगा, न्यू प्रोविजन। फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू it is known as new provision, दोस्तों अगर आप करंट ईयर के अंदर और प्रोविजन एडिशनल लगा रहे हो और प्रोविजन बना रहे हो, इसका मतलब ही समझ लेना आप और एक्सपेक्टेड लॉस को आज मान रहे हो। अगर आपने एडिशनल प्रोविजन बनाया है करंट ईयर के अंदर, अगर आपका करंट ईयर आज है और आज आपने एडिशनल प्रोविजन बनाया है और बना रहे हो, पहले से पड़ा है तो ओल्ड प्रोविजन है, क्योंकि वो पहले से पड़ा हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर। अगर आप एडिशनल और प्रोविजन बना रहे हो, आपको लग रहा है कि और लॉस हो सकता है और एडिशनल प्रोविजन बना रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे न्यू प्रोविजन। क्या रहेंगे, न्यू प्रोविजन। तो दो बातें मैंने आपको समझाई, ट्रायल बैलेंस वाले प्रोविजन के अंदर होता है ओल्ड प्रोविजन, और जब एडिशनल एडजस्टमेंट के अंदर और कहता है बनाने के लिए 5% 2%, दैट इज कॉल्ड न्यू प्रोविजन। अब मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझाता हूं, फर्दर आगे बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1,
मेरे एग्जाम्पल अगर आप कर लोगे ना बैड डेट के अंदर, दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन लिया ना सर, सारे हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन। क्योंकि सर हम बेस से पढ़ते हैं, बेस से, और जब बेस क्लियर होता है ना सर, तब दुनिया कोई सा क्वेश्चन भी हो सब क्लियर हो जाता है। ठीक है, लो भाई, तो मैंने कहा मैं ट्रायल बैलेंस आपको बनाकर दे रहा हूं। ट्रायल बैलेंस सर एक बार मेरे क्वेश्चन बस समझते जाना और करते जाओ। अगर आपने ये समझ लिया ना सर, मैं कह रहा हूं आप कोई सा भी क्वेश्चन लिया ना प्रोविजन का, कहीं से भी कोई सा भी किसी बुक का क्वेश्चन लिया ना, सारे कर लोगे आप, सारे कर लोगे मेरे दोस्तों, कुछ नहीं छूटेगा। आप समझे बात को, अगर आप समझने लग गए ना सर, समझ कर लोगे। ये मेरा डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड मैंने बनाई नहीं अभी, कुछ है नहीं फालतू की बातें। अभी मैं सिर्फ क्या दिखा रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ आपके पास सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर। और मैंने कहा सन्ड्री डेटर मेरे 3 लाख रुपए के है, ये तो एसेट है, डेटर हमारी एसेट होती है, 3 लाख रुपए के हैं। और आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ बातें गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ बातें गिवन है दोस्तों। और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या है, चलो बस जैसे ही हमारा ये कंसेप्ट खत्म हो गया ना, तो सब खत्म हो गया। देखना प्रोविजन का कंसेप्ट क्या रहा है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, create a provision for doubtful debt at the rate sir 5% on debtor, at the rate 5% on sundry debtor, at the rate 5% on sundry debtor। ये कहता है कि सन्ड्री डेटर में से 5% का प्रोविजन बनाओ, ऐसा लिखा हुआ आएगा। कहता है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर। इसका मतलब क्या, इसका हिंदी अनुवाद ये है, अगर इसका इंटरप्रिटेशन करे, एनालाइज करे, इसको समझे, तो इसका मतलब यह है कि हम इसे कहना चाहता है कि सन्ड्री डेटर का 5% हमें लग रहा है कि फ्यूचर में बैड डेट होगा। यही तो मतलब हुआ। अगर वो हमसे कह रहा है कि प्रोविजन बनाओ, तो अभी मैंने आपको सिखाया था प्रोविजन बनाते कब है, जब हमें लगता है कि फ्यूचर में डेटर हमें पैसा नहीं देंगे। और कितना लग रहा है, सिर्फ 5% ऐसा लग रहा है कि सन्ड्री डेटर में, मतलब 3 लाख का 5% हमें सिर्फ लग रहा है कि 3 लाख के 5% कितना होगा, 15,000 के डेटर हमें फ्यूचर में पैसा नहीं देंगे, लॉस हो सकता है। होगा या नहीं होगा वो फ्यूचर पता चलेगा, हो सकता है। तो अगर हो सकता है ना, तो फ्यूचर के लॉसेस को आज ही मानो, इसलिए क्रिएट अ प्रोविजन लगा है। तो बात समझ में आ गई। तो अगर कहीं पर भी वर्ड लिखा है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% सन्ड्री डेटर, तो समझ लेना उसका मतलब यह है कि डेटर में से इतना परसेंट अभी लग रहा है फ्यूचर में और लॉस होगा, इसलिए आज मानते हैं। अगर मैं इसकी एंट्री आपको बताऊं, तो हम एंट्री करेंगे, अकाउंट बनाना सीखेंगे, पर एंट्री अगर करेंगे तो क्या एंट्री होगी, हम कहेंगे सर पहली एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और जो भी एडिशनल प्रोविजन होता है दोस्तों, जो करंट ईयर बनाया जाता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, न्यू प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो याद रहेगी, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम न्यू प्रोविजन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है और नया बनाना है इस साल, न्यू प्रोविजन। और कितने से एंट्री होगी, 3 लाख का 15%, 5%, 15,000, 5 15, 15,000, 15,000। ये तो मैंने एंट्री पास कर दिया। अगर मैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाऊं तो क्या एंट्री होगी, 2 जगह जाएगा दोस्तों, 2 जगह, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और एक बैलेंस शीट में डेटर कम हो जाएंगे। यहां भेज दूंगा 2 न्यू प्रोविजन लिख दो, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो बाकी लिखना न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन लिख के समझ जाएगा पर्सन, चेक करने वाला एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये करंट ईयर में बनाया गया प्रोविजन है। ये आएगा 15,000। तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया दोस्तों, ये हो गया डेबिट इफेक्ट। ये क्या हो गया दोस्तों, डेबिट इफेक्ट हो गया, ये डेबिट इफेक्ट हो गया। और क्या बनेगा सर, बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा। हमें डेटर जितने भी है ना हमारे डेटर में से माइनस कर दूंगा न्यू प्रोविजन, डेटर में से क्या कर देंगे माइनस, न्यू प्रोविजन हम डेटर में से माइनस कर देंगे और कहेंगे डेटर हमारे 3 लाख रुपए के थे, अब कितने के बच गए, 15,000 का हमने लॉस मान लिया, तो अब कितने के बच गए दोस्तों, अब बच गए सर यहाँ पर 3,85,000 और 2,85,000, 2,85,000 सर, 2,85,000, क्योंकि हमने लॉस मान लिया। मुझे लग रहा है कि अब डेटर मेरे को पैसा नहीं देंगे, तो 2,85,000 का हमने क्या मान लिया, उसको लॉस मान लिया। क्लियर है या नहीं है, क्लियर है या नहीं दोस्तों, हाँ जी सर क्लियर है, क्लियर है मेरे दोस्तों। चलो 2,50,000, तो यस की एंट्री हुई। व्हेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ, व्हेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नॉट शोन इन ट्रायल बैलेंस,
अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर शो नहीं होता तो डबल इफेक्ट कैसे होंगे? एक तो पीएन अकाउंट के अंदर न्यू प्रोविजन चला जाएगा, डेबिट इफेक्ट हो जाएगा, और एक डेटर में से माइनस होगा, क्रेडिट इफेक्ट हो जाएगा, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन शो नहीं होगा। बट ये ऐसा केस है जहां पर प्रोविजन ट्रायल बैलेंस के अंदर भी हो सकता है और विदाउट ट्रायल बैलेंस के अंदर भी हो सकता है। क्या ये समझ में आ गया? ये था बेसिक क्वेश्चन। ये क्या था दोस्तों? बेसिक क्वेश्चन। क्लियर है? तो आगे क्वेश्चन बढ़ू। आगे क्वेश्चन बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ फॉर्मेट बताना चाहता हूं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर बैड डेट और प्रोविजन दोनों आ जाए तो सबसे पहले आप कैसे करोगे? प्रोविजन हाउ मच, हाँ, इन विच अमाउंट, कौन से अमाउंट में द परसेंटेज ऑफ प्रोविजन शुड बी क्रिएटेड, परसेंटेज ऑफ प्रोविजन शुड बी क्रिएटेड। अभी तो मैंने डेटर में से निकाल दिया, परसेंटेज ऑफ प्रोविजन शुड बी क्रिएटेड। किस अमाउंट में परसेंटेज क्रिएट कर जाएगा? बताओ। अभी मैंने किस पे क्रिएट करा था? 5% किस पे निकाला था? डेटर में के 3 लाख में से। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं किस पे। मैंने एक एग्जांपल बनाया और मैंने कहा देखो सर, मेरे पे एक डेटर है, मेरे पे डेटर है सर, मेरे पे डेटर है 3 लाख रुपए, जिसमें से फर्दर बैटअप हो गया। फर्दर बैटअप का मतलब क्या होता सिखाया था? करंट ईयर का बैटअप अभी और हो चुका है। फर्दर बैटअप 20,000 के बैटअप हो चुके, और कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाओ, प्रोविजन फॉर डीडी बनाओ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाओ। क्या बनाओ? 5% का डाउटफुल डेब्ट बनाओ। ऐसे करके मेरे को कुछ कहानी दे रखी होगी, क्वेश्चन के अंदर डेटर भी होगा, बैड डेब्ट भी होगा, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी होगा। ठीक है, अच्छा, तो मैंने कहा बताओ ये 5% किस पे बनाऊं? यही तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ये 5% किस पे, 3 लाख पे करूं या किसी और पे करूं? तो इन विच अमाउंट द परसेंटेज ऑफ प्रोविजन शुड बी क्रिएटेड। ठीक है, कौन सा अमाउंट ऑफ प्रोविजन? आपको मैं लॉजिक के साथ समझाने वाला हूं। मैंने कहा बताओ सर, इसका आंसर मैं दे रहा हूं। मैंने कहा सिंपल बताना, मेरे को डेटर कितने के है मेरे पास? सर आपने कहा 3 लाख रुपए के। डेटर मेरे पास कितने के हैं मेरे दोस्तों? 3 लाख के है ना? हाँ ठीक है। अब सर इसमें से पहले माइनस कर देना फर्दर बैटअप। क्या माइनस करना? फर्दर बैटअप माइनस करना। वो बैटअप माइनस मत करना जो ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा। मैं बार बार कहूंगा, वो बैटअप माइनस नहीं होगा जो ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा, क्योंकि जब हम ट्रायल बैलेंस में बैटअप डालते हैं तो ऑटोमेटिकली डेटर कम कर देते हैं। बैटअप ट्रायल बैलेंस में डालते ही डेटर कम हो जाता है, ऑलरेडी माइनस हो चुका है, दोबारा नहीं करेंगे। कौन सा बैटअप माइनस करेंगे? फर्दर बैटअप माइनस करेंगे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होती है, पहले वो माइनस करना 20,000 रुपए। और जो भी अमाउंट आएगा, जो भी अमाउंट आएगा ना दोस्तों, जो भी अमाउंट आएगा 1,80,000, 2,80,000, इस 2,80,000 में जो बच जाएगा डेटर माइनस करने के बाद, नेट डेटर कहते हैं इनको। क्या बोलते हैं? नेट डेटर। जो बच जाएंगे उसमें से माइनस करना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डीडी, और क्रिएट भी उसमें से करना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, डाउटफुल डेब्ट एट द रेट 5%। और किस पे क्रिएट होगा मेरे भाई? इस पे होगा। अब 3 लाख पे क्रिएट नहीं होगा। तो ऐसा क्यों? इसका रीजन क्या था कि 3 लाख पे क्रिएट ना करके हमने सर 280 पे क्रिएट करा, पहले बैटा माइनस कर दिया, फिर जाकर प्रोविजन क्रिएट करा। इसका लॉजिक सुनना सर, आप लॉजिक सुनना, बिल्कुल जेन्युइन लॉजिक है, आपको बताने आ रहा हूं। ये तो हो गया 14,000 और ये 14,000 यहां से डिडक्ट कर लेंगे तो मेरा न्यू प्रोविजन मिल जाएगा। और 14,000, 2,80,000 में से 14,000 चले जाएंगे दोस्तों, 2,66,000 मेरा और डेटर बन गया इन बैलेंस शीट डेटर, जो कि बैलेंस शीट में शो होगा नेट में 2,66,000 रुपए। दोस्तों समझे मेरी बात को? डेटर 3 लाख के थे। मैंने कहा मैं आपका डेटर हूं 3 लाख रुपए के, मेरे पे आपके अलग अलग 3 लाख रुपए पड़े हुए। ठीक है, अब आपने, मैंने आपसे कहा देख भाई मैं 20 तो दूंगा ही नहीं, किसी हालत में नहीं दूंगा मैं 20 तो दूंगा ही नहीं। आपके पास 3 लाख के डेटर है, मैं नहीं हूं आपका डेटर। मान लेते हैं हमारे पास 10 डेटर है, 10 जने हैं, 10% है, जिनमें मेरे को टोटल अमाउंट करा तो 3 लाख के डेटर है। अब आप मेरी बातों को ध्यान से क्लियरिटी के साथ समझे, मैंने क्यों फर्दर बैटा माइनस करा, उसके बाद 5% क्यों निकाला। दोस्तों आप मेरी बात समझे कि मेरे पास 10 जने हैं और 10 से मुझे टोटल पैसा लेना था 3 लाख रुपए। एक पर्सन आया मेरे पास, कहा कि देख भाई मेरे पे पैसे है ही नहीं, मैं दूंगा ही नहीं, और दूंगा नहीं, तू चाहे अभी ले, तू यकीन कर ले, अब मैं देने वाला नहीं हूं, तेरा एक्चुअल बैटअप हो चुका, तू मान ले, इसको लॉस मान ले, मैं नहीं दूंगा पैसे। तो एक पर्सन मेरे पास आता है और कहता है कि भाई मैं पैसे नहीं दूंगा 20,000 रुपए। मैंने कहा ठीक है, तेरे को तो मैं हटा ही देता हूं, अब मेरा पैसा जो आना है बाकी 900 आना है वो है, बाकी 9 से आना है, और वह 2,80,000 रुपए। दोबारा समझे,
मैं मेरे पे 10 जने थे और 10 जने से मेरे पे टोटल पैसा लेना था 3 लाख रुपए। एक पर्सन आया मेरे पास और उसने मेरे से बोला कि सर मेरे पे पैसा है ही नहीं, आप कुछ भी कर लो, चाकू लेके मुझे पेट में घुसा दो, मैं गर्दन काट दो, पर मेरे पैसा है नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं दे ही नहीं पाऊंगा, अभी नहीं फ्यूचर में भी नहीं दे पाऊंगा, साफ सीधी बात। तो कहा ठीक है भाई मत दे, आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर, मेरा बैटअप हो गया, मेरा लॉस हो गया, मैंने हटा दिया मेरे दोस्तों। बताओ डाउट किस में होगा? डाउट उन 10 जनों में होगा या सिर्फ 9 जनों में होगा? क्योंकि 10वें को तो यकीन हो गया कि वो बैटअप है, उसमें कब से डाउट होने लग गया? सर डाउट 3 लाख पे होना चाहिए या 280 पे? सर ऑब्वियस ही बात है 280 पे होना चाहिए मेरे दोस्तों। जो बैटअप हो ही गया उसमें यकीन है कि बैटअप हो चुका है, उसमें कैसा डाउट? डाउट मैं क्या कह रहा हूं, प्रोविजन 5% क्रिएट करूंगा उन डेटर में जो पैसा लग रहा है कि देंगे, पर इसमें डाउट भी है 5% का। बट 20,000 का अगर मैं 3 लाख पे डेटर पे 5% क्रिएट कर दिया ना, 3 लाख के डेटर पे 5%, तो ये समझ लेना इस 20,000 पे भी 5% क्रिएट हो चुका है, और 20,000 तो एक्चुअल में बैटअप हो चुका, जिसमें डाउट कैसा आएगा? क्या मैं उससे बोलूंगा 10वें वाले पर्सन से यार 20,000 तेरे को भी देना ना, तो 5% का तेरा भी डाउट है मेरा। अब वो साफ मना कर रहा है भाई कि मैं दूंगा ही नहीं पैसे, तो किस बात का डाउट? तो पहले क्या करना, पहले 3 लाख में से वो डेटर हटा देना जो एक्चुअल बैटअप है, जिसमें दो पैसा देंगे ही नहीं, देंगे नहीं, कुछ भी कर लेना, पैसा नहीं देने वाले। और जब बच जाए तो उनसे उम्मीद है कुछ आने की, इसलिए उसमें से 5% निकालना, क्योंकि अब वो 5% लग रहा है कि नहीं देंगे। उन बाकी 9 में से लगेगा ना कि उम्मीद है कुछ आने की या नहीं आने की, वो 10वें वाला पर्सन जो देगा ही नहीं, उसको कोई उम्मीद है क्या? इसलिए पहले माइनस करा जाता है बैटअप और उसको हटाकर बिल्कुल साइड कर दिया जाता है, और जो रिमेनिंग डेटर बच जाते हैं उसमें से प्रोविजन क्रिएट कर जाता है, क्योंकि उतने डेटर 9 जने जो बच गए हैं उतने में से लगेगा कि 5% आएगा। क्लियर है नहीं है? एक्चुअल बैटअप से कभी डाउट नहीं होता दोस्तों, जो रिमेनिंग डेटर बच जाते हैं उस पर डाउट होता है। इसको नेट डेटर की जगह क्या लिख लो, रिमेनिंग डेटर लिख लो। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? ये बातें ध्यान रखना। अभी इस फॉर्मेट को मैं थोड़ा आगे बढ़ाने वाला हूं, जब मैं पढ़ाऊंगा प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर, और ये प्रोविजन फिर बढ़ा दूंगा, फिर याद दिलाऊंगा कि पहले प्रोविजन माइनस होगा या फर्दर बैटअप माइनस होगा। तो बताओ पहले प्रोविजन माइनस होता है या फर्दर बैटअप? सर पहले फर्दर बैटअप माइनस होगा, वो बैटअप नहीं माइनस होगा जो इसमें है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस वाला बैटअप नहीं है, ट्रायल बैलेंस वाला बैटअप माइनस नहीं होगा। समझना क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में डालते ही माइनस कर दिया था, पिछली ही क्लास में बताया मैंने। कौन सा वाला माइनस होगा? ट्रायल बैलेंस वाला नहीं होगा। कौन सा वाला होगा? फर्दर बैटअप जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही है वो। आपको इतना घुमाएगा ना दोस्तों, अगर आपने ये बातें नहीं सीखी कि पॉइंट नाम से तो आपको घुमा देगा। मैं बता रहा हूँ वो बैटअप जो ट्रायल बैलेंस में भी गिवन होगा एडिशनल में, तो कौन सा माइनस करेंगे? सिर्फ एडिशनल वाला माइनस करेंगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस वाला ऑलरेडी डेटर कम कर देता है। क्लियर है नहीं है? क्या पहले माइनस होगा? प्रोविजन पहले निकाला जाएगा या फर्दर बैटअप? पहले फर्दर बैटअप हटा लो, क्योंकि इससे पैसा आना ही नहीं है अब, और जो बच जाएगा उसमें डाउट होगा। क्लियर है या नहीं है? आओ एग्जांपल के साथ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अच्छा इसी एग्जांपल में पहले बताओ मैं इसमें एंट्री पास कर सकता हूं या नहीं कर सकता? हाँ जी एंट्री पास कर सकता हूं। बताओ क्या एंट्री होगी, बताना जरा जल्दी से बताओ क्या एंट्री होगी। सबसे पहले तो बैटअप की एंट्री रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि फर्दर बैटअप हुआ, तो मैंने कहा एंट्री अगर जनरल एंट्री पास करूं तो पहली एंट्री होगी बैटअप की, जनरल एंट्री। तो मैंने कहा जनरल एंट्री पहले मेरे बैटअप कितने के? 20 के, और इस 20,000 से मेरे डेटर बढ़ गए, कम हो गए? कम हो गए। तो एंट्री होगी बैटअप अकाउंट डेबिट टू डेटर। पिछली क्लास में कराया था बैटअप अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैटअप अकाउंट डेबिट टू डेटर। कितना सर? बैटअप अकाउंट डेबिट टू डेटर 20,000 से मेरे डेटर क्या हो गए? कम हो गए। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, बैटअप होगा 20,000 कम हो जाएंगे। अब मैं बनाऊंगा प्रोविजन, अब मैं बनाऊंगा दोस्तों प्रोविजन। अब मैं प्रोविजन बनाऊंगा तो प्रोविजन कितना बनाऊंगा? 280 पर बनाऊंगा। तो एंट्री होगी पी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रोविजन बनाते टाइम डेटर कभी कम नहीं होता दोस्तों। प्रॉफिट प्रोविजन बनाते टाइम, क्रिएट करते टाइम डेटर को कोई फर्क नहीं होता। हाँ बैलेंस शीट में जाकर इफेक्ट करेगा, प्रोविजन क्रिएट करते टाइम डेटर इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो मैं क्रिएट कर रहा हूं, कहीं डेटर एंट्री पास कर रहा हूं, कहीं लिख रहा हूं डेटर क्या लिख रहा हूं? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और मेरे भाई कितने का बनेगा? मैं कहूंगा 280 का बनेगा दोस्तों। कितने का बनेगा? 280 का। क्या करेगा? एट द रेट 5% 280 का बनेगा, दैट इज 14,000। कितना बनेगा दोस्तों? हाँ कितने बनेगा? 2,80,000 का 5% कितना होगा दोस्तों? ये होगा 14,000, 14,000 रुपए का क्या बन जाएगा सर? बैटअप बन जाएगा। साल के एंड में जो बैटअप होता है लॉस हमारा, इस लॉस को ट्रांसफर करते हैं पीएनएल अकाउंट के अंदर, तो ट्रांसफर एंट्री पास करेंगे। देखो प्रोविजन तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर चले गया, अब 11 बच गया ना, तो एंट्री क्या होगी? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैटअप, बैटअप कैंसिल कर देंगे। आई बात समझ में नहीं आई? ये कितना हो गया? 20,000। जो बैटअप लॉस था अभी तो एंट्री पास करिए, ट्रांसफर भी तो करवाएंगे पीएनएल अकाउंट के अंदर,
तो पीएनआर अकाउंट में दोस्तों इसको ट्रांसफर करने दिया, ऑलरेडी ट्रांसफर होता है डायरेक्ट, प्रोविजन बनता ही पीएनआर अकाउंट में डालकर है, इसलिए आई बात समझ में नहीं आई, क्लियरिटी है कंसेप्ट में, ठीक है। एग्जांपल और करते हैं दोस्तों, मैंने कहा ना आज की क्लास लंबी होने वाली है, एग्जांपल करते रहेंगे। जब तक मैं आपको आज की क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं बता दूं ढंग से तो नहीं हो पाएगा सर, ढंग से मुझे एकदम क्लियरिटी के साथ बताना है, इसलिए थोड़ा टाइम दो मुझे और मैं आपको बता दूं। अब मेरा सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो सब समझ में आ गया दोस्तों। इस क्वेश्चन को मैं बहुत बड़ा ले आना, सारे अकाउंट में प्रिपेयर करने वाला हूँ क्वेश्चन को। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, बस उसके बाद छुट्टी होगी, उसके बाद छुट्टी होगी। बट पहले मेरा ये एग्जांपल करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ये कॉन्सेप्ट आपको सारी बातें कवर कर लेगा। ट्रायल बैलेंस देखो, ट्रायल बैलेंस अब मैं डेबिट भी बना रहा हूं, क्रेडिट बना रहा हूं। मैंने कहा सबसे पहले ट्रायल बैलेंस के अंदर सन्ड्री डेटर मुझे गिवन है। ट्रायल बैलेंस के अंदर कौन सा गिवन है? सन्ड्री। अभी तक मैंने जितना पढ़ा है ना सारी बातें डाल रहा हूं, पिछली क्लास की अगली क्लास में, तब मजा आएगा सर पढ़ने में असली चीज। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट डाल रहा हूं, प्रोविजन फॉर डीडी लिख देता हूं, और इस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का मतलब ही यही हो गया, क्रेडिट नेचर का है तो कहां पर आएगा? 20,000 पे क्रेडिट सेट आएगा। और मैं डाल देता हूं बैड डेब्ट। अच्छा बैड डेब्ट क्या है? ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो समझ लो कहां ही आएगा। बैड डेब्ट से ट्रायल बैलेंस में होते ही समझ लेना कि इससे डेबिट कम, क्योंकि हाँ डेबिट करा तो ये डेबिट कम करना पड़ेगा ना सर, इसलिए ऑलरेडी माइनस कर चुके होते हैं। लो भाई लो, ये वो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? पहला कह रहा है एडिशनल बैड डेब्ट, जिसको हम फर्दर बैड डेब्ट भी कहते हैं और एडिशनल बैड डेब्ट भी कहा जाता है। फर्दर मतलब और, एडिशनल मतलब और। एडिशनल बैड डेब्ट हो गया मेरा 10,000 रुपए का। दोस्तों ये आला है, इससे तो डेटर कम हो गए, इससे नहीं हुए भी डेटर कम, इसके डबल इफेक्ट होंगे, ठीक है। ये एक इफेक्ट होगा, इसका भी एक इफेक्ट होगा। और सेकंड पॉइंट, मेंटेन प्रोविजन फॉर डीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, maintain provision for doubtful debt at the rate 10% on sundry debtor, at the rate 10% on sundry debtor, at the rate 10% on sundry। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, वो प्रोविजन तो ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है, ये ओल्ड प्रोविजन होता है। कैसा होता है? ओल्ड। और वो प्रोविजन तो एडिशनल प्रोविजन होता है, वो क्या होता है? न्यू प्रोविजन होता है। क्या बात समझ में आ गई? ट्रायल बैलेंस वाले प्रोविजन को क्या बोलते हैं? ओल्ड प्रोविजन। और जो अभी और मेंटेन करना उसको क्या बोलते हैं? न्यू प्रोविजन कहते हैं। ध्यान सुनो, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको करके दिखाता हूं, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए उसके बाद मैं अकाउंट बनाऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा पहले जनरल एंट्री पास करते हैं, पहले जनरल एंट्री पास करते हैं मेरे भाई। जनरल एंट्री अगर पास कर ली तो सब आ गया आपको। जनरल एंट्री पास करते, बताओ बैड डेब्ट की कौन सी एंट्री पास करूंगा? याली करूंगा या याली करूंगा? ये ऑलरेडी हो चुका है दोस्तों, ये बैड डेब्ट की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। ये ट्रायल बैलेंस में आती समझ लेना, एंट्री पास हो चुकी है, ये नहीं करनी है अब। एंट्री सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन की होती है, एडजस्टमेंट एंट्री उन्हीं को तो कहते हैं जो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो करनी है। ट्रायल बैलेंस की कभी एंट्री पास करी है आपने? हाँ, जनरल एंट्री जब करी थी तब। ये तो एडजस्टमेंट एंट्री होती है, एडजस्टमेंट एंट्री सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन की होती है। ये बात आपको मैंने पहले क्लियर करी थी, क्लियर है या नहीं है? ट्रायल बैलेंस की एंट्री मत करने लग जाना मेरे भाई, इतने सब पढ़ाने के बावजूद भी। चलो चलो भाई, सबसे पहले एंट्री क्या होगी? मैंने कहा भाई बैड डेब्ट हुआ, एडिशनल बैड डेब्ट, वो बैड डेब्ट जो ऊपर हुए थे ट्रायल बैलेंस उसका क्या करूं? हो चुका, वो ऑलरेडी एंट्री पास हो चुकी, एडजस्टमेंट करनी है अब। बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर, कितना सर? 20,000 के नहीं 10,000 के बैड डेब्ट हुए। एडिशनल इंफॉर्मेशन कितने के बैड डेब्ट है? 10,000 रुपए के। अभी जो मैंने ऊपर एंट्री बताई वही तो एंट्री पास करनी है मेरे दोस्तों। तो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर। इसके बाद दोस्तों साल के एंड में इसको क्या करते हैं? साल के एंड में इसको क्या करते हैं सर? पीएनआर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। साल के एंड में क्या करते हैं? पीएनआर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। बट सर ध्यान देना, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट में कोई बैलेंस बचा होता है तो हम बैड डेब्ट को अब पीएनआर अकाउंट में नहीं भेजते। ध्यान समझना, अगर मेरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट में कुछ बैलेंस पहले से पड़ा हुआ है, अब क्या बैलेंस पड़ा हुआ है मैं सिखाऊंगा, तो हम बैड डेब्ट को ट्रांसफर पीएनआर अकाउंट में नहीं करते, प्रोविजन अकाउंट में कर देते हैं। दोस्तों यह होगी एंट्री। आपको पहले तो मैं बैड डेब्ट क्रिएट करूंगा, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर, और इस बैड डेब्ट को जो मैं लास्ट करता था ना पीएनआर अकाउंट में ट्रांसफर कर देता था, अब ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि इधर प्रोविजन फॉर डाउट, प्रोविजन में अकाउंट में पहले से कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है।
दोस्तों बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, और हम एंट्री पास करेंगे इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। देखो पहले मैं प्रोविजन अकाउंट में नहीं बेचता था, पहले मैं इसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करता था दोस्तों। ये होगी ट्रांसफर एंट्री, ये कौन सी होगी? बीइंग बैड डेट ट्रांसफर, बीइंग बैड डेट ट्रांसफर कहां पर? पीएनएल अकाउंट में, प्रोविजन में, टू प्रोविजन, बैड डेट ट्रांसफर टू प्रोविजन अकाउंट, पूरा लिख लेना, बैड डेट ट्रांसफर टू प्रोविजन। दोस्तों याद रखना, जब भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में कुछ बैलेंस बच जाता है तो बैड डेट सर पीएनएल में नहीं फिर प्रोविजन में जाता है। ऐसा क्यों जाता है मैं आपको सिखाऊंगा, रीजन दूंगा इसका, बट पहले ये क्वेश्चन पूरा खत्म हो, धीरे धीरे करके लॉजिक समझ में आएगा। ठीक है, अभी आप डाल दो, ये मान करके लॉजिक मिलेगा आगे, अभी आप डाल दो, ठीक डाल दे। और प्रोविजन की एंट्री तो करनी है, ये तो देखो ट्रांसफर, ये तो पहली एंट्री तो हुई एडम मानने की, दूसरी एंट्री होगी ट्रांसफर करने की, तीसरी एंट्री जो प्रोविजन क्रिएट करना उसकी भी तो होगी। अब प्रोविजन क्रिएट करने के लिए क्या एंट्री करते हैं? एक एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, फिर न्यू प्रोविजन लिख दूं, तो न्यू प्रोविजन जो अभी बनाया, कितना बनाएंगे? तो मैंने कहा इसको निकालने के लिए मुझे कहा जाना पड़ेगा? वर्किंग नोट के अंदर, तो मैंने यहाँ लिख दिया वर्किंग नोट नंबर 1। और मैंने वर्किंग नोट बनाया तो सबसे पहले मैंने तरीका बताया कि पहले आप डेटर लिखो, तो डेटर कितने के थे? मैंने कहा भाई 4,10,000 रुपए के थे। इसमें से माइनस करना फर्दर बैडअप, याद आ रहा है आपको? अभी कराया फर्दर बैडअप, क्यों? क्योंकि वो बैडअप जो एक्चुअल हो चुके हैं उसको अब मुझमें डाउट तो ना हो कभी, तो 10,000 यहां से माइनस कर दिया। और जो रिमेनिंग डेटर बच जाएगा इसको हम क्या नाम देंगे? रिमेनिंग डेटर। इस पर बनाना प्रोविजन, रिमेनिंग डेटर, तो प्रोविजन बनाना 4 लाख इसके अंदर, और यहां से माइनस करना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और जो बैलेंस अमाउंट बच जाएगा ना डेटर का, नेट डेटर, उसको डाल देना बैलेंस शीट के अंदर। प्रोविजन फॉर डीडी एट द रेट, कितने परसेंट का प्रोविजन बनाना है आपको? 10% का प्रोविजन बनाना है। तो 4 लाख का 10% कितना होगा? 40,000 का प्रोविजन बनाओ, और जो बच जाएगा 3,60,000 रुपए इसको डाल देना नेट डेटर बैलेंस शीट के अंदर। आई बात समझ में नहीं आई? ये रहेगा बैलेंस शीट। तो कितने का प्रोविजन बनेगा? 4 लाख। अब ये बात क्लियर हो गई आपको प्रोविजन अमाउंट कैसे निकालते हैं? अब तो क्लियर हो गया ना? तो ये आपको हर बार करके दिखाना पड़ेगा। सर इसको हर बार वर्किंग नोट में करके दिखाना नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ये तो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, सीधा कैलकुलेटर आपके हाथ में है, बस यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर ब्रैकेट में कि मैंने कितने पे निकाला है। मैंने 4 लाख, पहले लिखना 4,10, ऐसे करना 4,10, अगर लिखना चाहते हो ऐसे लिख देना 4,10 माइनस 10 और उसका 10%, ठीक है, बस ऐसे करके डाल देना बाहर, कोई दिक्कत। अगर ऐसा करोगे तो वेल एंड गुड, फिर तो बहुत अच्छी बात है। नंबर भाई नंबर तो कटेंगे नहीं ऐसे, पर अच्छी एक प्रेजेंट करके दिखाना होता है तो बहुत अच्छी बात होती है। टाइम हो तो करना, नहीं हो तो मत करना। लो मेरे भाई, तो मैंने एंट्री पास कर दी और मैंने आपको एक नई एंट्री सिखाई, यहाँ पर न्यू एंट्री, यहाँ पर लिख देना सर दिस इज द न्यू एंट्री। ये कौन सी एंट्री है? हमारी एक न्यू एंट्री है, जिसमें हमें बताया गया कि अगर प्रोविजन में पहले से कुछ बैलेंस पड़ा होता है तो हम प्रोविजन अकाउंट, हम बैड डेट को पीएनएल अकाउंट में ना डालकर कहां डालते हैं सर? प्रोविजन अकाउंट में डाल देते हैं, प्रोविजन अकाउंट में। तो ये हमारी न्यू एंट्री हो गई एक। कब करनी है ये एंट्री? जब प्रोविजन में पहले से कुछ बैलेंस पड़ा। सर ये क्या बैलेंस कर रहे हो आप, मुझे बताओ तो सही, तो बताते हैं। तो सबसे पहले आप सन्ड्री डेटर अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? सन्ड्री डेटर अकाउंट। मैं आप सारे अकाउंट बनाकर दिखाता हूँ। सन्ड्री डेटर कौन सा समझाने के लिए सारे अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे। सन्ड्री डेटर अकाउंट बनाएंगे और एक एक करके मैं कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता हूँ। देखो जब तक आपको मैं सारे अकाउंट नहीं प्रिपेयर करके दिखाऊंगा ना, तब तक आपको समझ ही नहीं आनेगा। तो इसलिए सारे अकाउंट प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। तो अगर मैंने कहा टू बैलेंस बीडी, मैंने क्या कह दिया भाई? टू बैलेंस बीडी। पहले से मेरे पे कुछ बैलेंस पड़ा था नहीं पड़ा? हाँ सर पहले से मेरे पे कुछ बैलेंस पड़ा था। कितने का पड़ा था सर? मैंने कहा सर 4,10,000 का बैलेंस पड़ा था मेरे पहले से। ट्रायल बैलेंस के अंदर 4,10,000 पे शो कर रहा है। अच्छा बताओ, फिर अगली एंट्री मैंने क्या पास करी? अगली एंट्री करी बैडअप। बैडअप होने की वजह से डेटर बढ़ गए, कम हो गए? सर कम हो गए। तो डेटर अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। किसकी वजह से? बैडअप की वजह से। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा? बाय बैडअप। बैडअप की वजह से क्या हो गया मेरा अकाउंट? तो कितना बच गया सर? ये बच गया सर यहाँ पर 10,000 रुपए। और सर मेरा बैलेंस कितना बच गया लास्ट साल के एंड में? बाय बैलेंस सीडी कितना बच गया? बाय बैलेंस सीडी। दोस्तों प्रोविजन याद रखना, प्रोविजन क्रिएट करने से कभी डेटर कम नहीं होते, बस बैलेंस शीट में हम शो करके जरूर दिखाते हैं कि हमारा प्रोविजन इतना, हमारा डेटर इतने बच गए जो गुड डेटर। कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे प्रोविजन, कभी सन्ड्री डेटर के अंदर प्रोविजन मत भेज देना दोस्तों, क्योंकि सर प्रोविजन से कभी भी डेटर कम नहीं किया जाता। क्योंकि अभी हमने डाउट हो रहा है ना, अभी हमने माना है सर एक्चुअल में थोड़ा बैडअप, जब एक्चुअल बैडअप होगा तभी डेटर कम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सही में आ गई बात? तो आपको प्रोविजन अकाउंट कितना बच गया? 4 लाख। बैलेंस शीट में भले ही 360 दिखे, पर अकाउंट के अंदर 4 ही दिखना चाहिए।
क्योंकि सर प्रोविजन से नहीं होता वो, सर बैलेंस शीट को टोटल डबल इफेक्ट शो करने के लिए दिखाना पड़ता है सर। वो सर 40,000 वहां क्यों माइनस करना पड़ता है, डबल इफेक्ट शो करने के लिए माइनस करना पड़ता है। आप देखो बराबर आ गया 4,10,000 का मेरे पास क्या था, 4,10,000 के डेटर थे जिसमें 10,000 का लॉस हुआ और बाकी क्या बच गया 4 लाख। सो जो प्रोविजन बनाया डाउट हुआ लॉस होने का उसको लॉस नहीं मानेंगे, लॉस तो मानोगे पर डेटर कम नहीं करोगे इससे। सर फिर बैलेंस शीट में डेटर क्यों कम करेंगे, क्योंकि सर हमारे डबल इफेक्ट शो करने के लिए करना पड़ता है, वैसे प्रोविजन बनाने से क्रिएट करने से डेटर कभी कम नहीं होता। अब सोचो अभी तो लॉस माना है, एक्चुअल जब लॉस होगा तभी तो डेटर कम करूंगा। एक बंदा है कह रहा है कि भाई मैं को बार बार टाल रहा है, बात को टाल रहा है कि बाद में दूंगा बाद में दूंगा बाद में दूंगा, पर बाद में अगर दे दिया तो पहले डेटर कम कर दोगे, नहीं करोगे ना सर। अभी लॉस मानो पर डेटर कम मत करो, लॉस मानो सर डेटर कम मत करो। डेटर कब करना, जब ये लॉस पता चल जाए कि एक्चुअल हो चुका आप डेटर, तब भी डेटर कम कर देना। तो याद रखना प्रोविजन से कभी भी डेटर कम नहीं करते। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का अकाउंट कभी भी डेटर कम नहीं किया जाता। और देखो मैंने लिखवाया, मैंने यहाँ पर लिखवाया, मैंने कहा ना जब एंड होते चले जाएगा कॉन्सेप्ट को समझाते रहूंगा, मैंने पॉइंट लिखवाया यहाँ पर। मैंने कहा था इट शुड बी नोटेड दैट द कस्टमर अकाउंट और सन्डी डेटर अकाउंट इज नॉट अफेक्टेड बाय मेकिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, क्योंकि प्रोविजन बनाने से लॉस माना जाता है। जब एक्चुअल में मेरे एक पर्सन ने क्या रहा बाद में दूंगा तो लग रहा नहीं देगा तो लॉस मान लिया, लॉस माना है, डेटर का मत करना, डेटर अभी भी उतने के शो करना। प्रोविजन क्रिएट करने से लॉस होता है, डेटर खत्म नहीं होता, डेटर कम नहीं किया जाता मेरे दोस्तों। डेटर कब कम करा जाता है, जब वो जो आपका लॉस माना था वो एक्चुअल में लॉस हो जाता है, तब डेटर कम होता है। याद रहेगी बात आपके पास। देखो ये पॉइंट भी क्लियर कर दिया मैंने आपको। देखो बात बताने लायक सारी है, ऐसा कहीं नहीं आएगा कि आपके पास क्यों ऐसा पॉइंट है, बताने लायक तो मैं बताऊंगा, बट उसको आपको रिटेन करना कितना टाइम तक रिटेन करते हो वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको बैकअप अकाउंट बनाकर दिखा रहा हूँ। बैकअप अकाउंट भी तो था मेरे ट्रायल बैलेंस के अंदर, बैकअप भी तो शो कर रहा था, तो मैं आपको बैकअप अकाउंट बनाकर दिखा रहा हूँ मेरे दोस्तों। ध्यान समझना, बैकअप अकाउंट मैं सारे अकाउंट बनाकर दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको बैकअप के अलग से, तो आपको वहां पर सारे अकाउंट आने चाहिए, नहीं तो भैया फिर नहीं होने वाला, ये बात ध्यान रखना, फिर नहीं आएगा कुछ भी, समझ में आ रहा है। तो सारे अकाउंट आने चाहिए आपको। लो भाई मैं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सारे अकाउंट बनाकर दिखा रहा हूँ, देखो क्लियरिटी मिल जाए आपको। बैकअप अकाउंट में सबसे पहले मुझे लॉस था, बैकअप का नीचे क्या होता है लॉस, तो यहाँ पे होगा टू बैलेंस पीडी। देखो ट्रायल बैलेंस के अंदर पहले से बैकअप गिवन था, टू बैलेंस बीडी, देखो कितना गिवन था ट्रायल बैलेंस के अंदर, पहले से बैकअप गिवन था, तो बैलेंस बीडी हो गया ना मेरे भाई। ये 6,000 रुपए, तो 6,000 हमारा बैकअप है, तो हमने कहा 6,000 यहाँ डाल दो, ये हमारा पहले से बैकअप है कुछ, और करंट ईयर में और बैकअप हुआ, तो बैकअप होने की वजह से डेटर कम हो गया था ना, तो बैकअप लॉस और बढ़ गया, तो डेटर अकाउंट आएगा। आप समझो लेजर पोस्टिंग करने आती है अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। देखो अगर डेटर अकाउंट के अंदर बैकअप क्रेडिट हो रहा है तो बैकअप अकाउंट के अंदर डेटर डेबिट होगा, क्रॉस पोस्टिंग होगी। देखो क्रॉस हो रहा है यहाँ से यहाँ, ये क्रॉस पोस्टिंग हुई नहीं हुई क्रॉस पोस्टिंग, दैट इज कॉल्ड क्रॉस पोस्टिंग। सो क्या बोलते हैं क्रॉस। अगर आपको ऐसा नहीं करना, नहीं आ रहा समझ में, एंट्री देखिए ना आपने, एंट्री करिए नहीं करी, देखना बताना बैकअप क्या हो रहा है, डेबिट किसकी वजह से, डेटर की वजह से, कर दो। अब ये तो नॉर्मल चीज है सर। तो कितना आ गया सर यहाँ पर 10,000 रुपए। अब टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा सर, ये टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा सर, टोटल अमाउंट हो जाएगा आपके पास 16,000। अब यहाँ पर 16 जाएगा, क्या पे ये लिखू बाय बैलेंस शीट। यहाँ पर दो बात आ सकती है, पहली बात ये आ सकती है कि इसको हम ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल अकाउंट के अंदर सारा का सारा, और करते हुए आए थे अभी तक पहली पिछली क्लास में हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हुए आए थे इसको दोस्तों। जो पीएनएल ट्रायल बैलेंस वाला बैकअप था उसको पीएनएल में ट्रांसफर करा, और जो 10,000 जो करंट ईयर फर्दर बैकअप था उसको पीएनएल में डाला। बट सर जब प्रोविजन अकाउंट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट होता है ना, उस टाइम तो सिर्फ बैकअप था। अगर सिर्फ बैकअप हुआ तो हम उसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, बट अगर प्रोविजन भी आ गया ना और उसके अंदर बैलेंस हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, अब मेरी बात को ध्यान समझना, मैं क्या समझाने चाह रहा हूँ। प्रोविजन फॉर अभी मैंने यहाँ छोड़ दिया, बैकअप अकाउंट क्लोज नहीं हुआ अभी सर, अभी मैंने वहां पर बस छोड़ा है। मैं आपको एक अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ प्रोविजन फॉर डेब्ट। प्रोविजन का नेचर क्रेडिट होता है दोस्तों, याद रखना। तो शुरुआत कहां से होगी, क्रेडिट साइड, तो क्या लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। और ये भी मुझे गिवन था ट्रायल बैलेंस के अंदर 20,000, चेक कर लो आप जाकर 20,000 रुपए। मैं दिखा देता हूं आपको एक बार, ये रहा 20,000 रुपए, आए समझ में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बाय बैलेंस बीडी 20,000, ठीक है। इसके बाद मेरे दोस्तों सबसे पहले प्रोविजन की एंट्री पास कर, न्यू प्रोविजन क्रिएट करा था। देखो पहले तो सर क्या करना, न्यू प्रोविजन क्रिएट करा था आपने, और न्यू प्रोविजन कब क्रिएट करा था, देखो मैं आपको कब बता रहा हूं, अगर प्रोविजन अकाउंट के अंदर पहले से बैलेंस गिवन होगा, ये वाला बैलेंस बता रहा था मैं आपको कि अगर प्रोविजन अकाउंट के अंदर पहले से कुछ बैलेंस पड़ा होगा 20,000 का,
तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले से कुछ प्रोविजन पड़ा हुआ है इतना 20,000 का, ठीक है, 20,000 का पहले से प्रोविजन पड़ा है ना दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि आपको सर ये जो टोटल 16,000 रुपए है, अब इस टोटल 16,000 रुपए कहां दिखाने आप पीएन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करने। पीएन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करने, कहां करने हैं, प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफर करने, प्रोविजन फॉर डीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट। 16,000 रुपए ट्रांसफर करना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट के अंदर, और यहाँ पर अभी समझा रहा हूँ क्यों करना, अभी समझा रहा हूँ, बस को ट्रांसफर कर देना। अगर आपके पास प्रोविजन में पहले से बैलेंस होगा तो अब डेटर जो ट्रायल बैलेंस वाले बैड डेट है और जो सर वैसा बैड डेट है 6,000, टोटल 16,000 ट्रायल बैलेंस वाला और विदाउट ट्रायल एडिशन टोटल बैड डेट को प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। और जब प्रोविजन में ट्रांसफर होगा तो फिर कॉस्ट पोस्टिंग होगी। देखो बैड डेट में अगर ये प्रोविजन करेक्ट हुआ है तो प्रोविजन अकाउंट में बैड डेट डेबिट होगा, तो बैड डेट कर देंगे सर, और ये कर देंगे सर 16,000 रुपए, ठीक है भाई, यहां कर दिया। अब नया प्रोविजन क्रिएट करो। अब नया प्रोविजन क्रिएट करने पे एंट्री क्या होती है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, एंट्री होती है ना। देखो नया प्रोविजन क्रिएट करने पे एंट्री बताई थी मैंने, ये तो ये एंट्री की अगर मैं पोस्टिंग करूंगा तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्या हो रहा है, क्रेडिट किसकी वजह से, पीएनएल की वजह से। तो यहाँ पर लिख दूंगा बाय पीएनएल अकाउंट, क्या लिख दूंगा यहाँ पर, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि नया प्रोविजन क्रिएट करा है, न्यू प्रोविजन, यहाँ लिख दूंगा न्यू प्रोविजन है। दोस्तों पहले से मेरे पे प्रोविजन पड़ा था 20 का, इस साल मैंने और प्रोविजन बनाया, मतलब फर्दर मेक और प्रोविजन करा है, जो कि इस साल का प्रोविजन कितना है सर मेरा, इस साल का जो मेरा प्रोविजन है सर वो, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों इस साल क्या आएगा, ध्यान समझना, बस यहां आएगा बैलेंसिंग फिगर, यहां 40 नहीं आया मेरे भाई। अगर यहां पर आपने 40 डाल देना सबसे बड़ी गलती कर दी, दुनिया की सबसे बड़ी गलती है। अब मेरी बात को ध्यान समझना, आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना, क्लियरिटी के साथ समझना, ठीक है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ दोस्तों। अभी मैं आपको बताऊंगा, ऊपर आपने ये एंट्री तो पास नहीं करी, वो एंट्री भी गलत पास करवाई है जानबूझकर, मैं आपको समझाना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप ये समझो, इधर ये मेरे पर डेटर कितने के हैं, मैंने कितने का प्रोविजन बनाना है सर, टोटल प्रोविजन मेरा कितने का होना चाहिए, 40,000 का होना चाहिए। टोटल प्रोविजन कितने का होना चाहिए, 40,000। ये मेरा क्लोजिंग प्रोविजन है, जो मेरा बचा होना चाहिए क्लोजिंग प्रोविजन। टोटल प्रोविजन कितने का होना चाहिए, 40,000 का, मतलब टोटल प्रोविजन मुझे कितने का बनाना है, 40,000 का। मेरी बात को ध्यान समझना, एक डब्बा है मेरे भाई, और ये डब्बा जो है वो सर थोड़ा नीचे बनाऊंगा, और ये डब्बा है सर प्रोविजन का। ये किसका डब्बा है, प्रोविजन फॉर डीडी का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का। अब मैंने यहां पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट के डब्बे में 40,000 रुपए डाल दिए। देखो 40,000 रुपए डालने का 40,000 नहीं डालना, 20,000 पड़ा था ना मेरे पहले से, 20,000। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि देखो प्रोविजन बनाने का मतलब क्या हुआ, आप मेरी बात को समझे। प्रोविजन बनाने का क्या मतलब हुआ बताना जरा। प्रोविजन बनाने का मतलब हुआ कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आज मान लो, और कैसे मान लो, प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल कर सेव कर लो। ये तरीका हो गया ना प्रोविजन, याद है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सेम प्रोसीजर। और कैसे सेव करते हैं, डालकर, चार्ज कर सेव करते हैं। दोस्तों जब मैंने प्रोविजन को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करा, जब मैंने प्रोविजन को पीएनएल अकाउंट में डाला डेबिट साइड पे, तो क्या हुआ, प्रॉफिट कम हो गया। तो मतलब मेरा प्रॉफिट 20 से कम हो गया, तो प्रोविजन अकाउंट में कहां से हो रहा है, 20,000 में हो रहा है। देखो प्रोविजन अकाउंट पहले से कितना पड़ा है मेरा बैलेंस, प्रोविजन अकाउंट में पहले से क्या पड़ा है, 20,000। ऐसे समझो कि जब जब मैं प्रोविजन बनाऊंगा तब तक 20,000 पे प्रॉफिट में से निकाल कर एक डब्बे में डाल दूंगा। ऐसा समझो, जब जब मैं प्रोविजन बनाऊंगा तो प्रोविजन बनाते टाइम कहां डालूंगा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे डालूंगा। और जब जब मैं प्रोविजन बनाऊंगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में डालूंगा, तब तक मैं क्या करूंगा, डेबिट साइड में डालते ही पीएनएल में से 20,000 रुपए निकाल के डब्बे में डाल दूंगा। ऐसा समझो, ठीक। अगर ये बातें समझ गए ना, जिंदगी की हर बात समझ गए दोस्तों। सबसे ज्यादा गलती इसी कॉन्सेप्ट में होती है, हर स्टूडेंट की सबसे ज्यादा गलती होती है, मैं बता रहा हूँ आपको, और यही मैं डिटेल में समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो मैंने क्या करा, मेरे पहले से प्रोविजन कितना का, 20,000, इसका 20,000 का है, तो इसका मतलब समझ लिया आपने। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपके डब्बे में 20,000 पड़ेगा। अब आपको प्रोविजन कितना बनाना है, मैंने देखा, जब मैंने कैलकुलेशन करी तो टोटल प्रोविजन जो क्रिएट करना है, टोटल प्रोविजन जो क्रिएट करना है सर, टोटल प्रोविजन जो क्रिएट करना है वो 10% करना है। और जो 10% निकला वो 40,000 रुपए निकला। जो 10% निकला, कितना निकला मेरे दोस्तों, 40,000 रुपए निकला है 10%। ध्यान समझना, गलती मत करना। 40,000 रुपए 10% निकला है, तो टोटल प्रोविजन कितना क्रिएट करना है, 40,000 रुपए। मेरे पे 20 पहले से ही तो है, तो मैं 40 क्यों क्रिएट करूं इस बार, ये समझो आप।
मेरे को टोटल प्रोविजन पूरे डेटर का 40,000 क्रिएट करना है, और 40,000 जब टोटल प्रोविजन क्रिएट करना है मेरे भाई, तो पहले से डब्बे में जब 20,000 पड़े हैं तो 40 ही तो क्रिएट करना है। तो मैं एक्स्ट्रा अगर मैं 40 इस बार और क्रिएट कर दूं और यहाँ पर डब्बे में और 40,000 डाल दूं तो 60 नहीं हो जाएगा क्या? मुझे प्रोविजन 60,000 का बनाना है या 40 का? सर 40 का बनाना है। तो आप ये दिमाग लगाओ कि अगर आप 40 इस बार और बना लोगे और प्रॉफिट में से निकाल लोगे तो गलती नहीं कर जाओगे। गलती क्या कर जाओगे? जब क्वेश्चन बोल रहा है कि 40 का बनाओ, आप 60 का क्यों बना रहे हो? क्योंकि 20 पहले से भी तो पड़ा है। तो क्या करना चाहिए? सर इस बार 40 का टोटल प्रोविजन तो 40 का बनाना है, पर बनाना सिर्फ 20 ही चाहिए। क्यों? क्योंकि सर 20 पहले से है। क्या है? 20 पहले से। तो मैंने कहा 20 बनाना चाहिए। ये बातें क्लियर हुई नहीं हुई? हाँ सर, 40 का टोटल प्रोविजन 40 का बनाना है, वो मैंने निकाला। कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। ये जो निकाला है प्रोविजन 40,000 रुपए, ये जो 40,000 रुपए निकाला, इसका मतलब ये नहीं कि इतने का क्रिएट करना है। पहले ये देखो पहले से कुछ पड़ा है या नहीं है। जो पहले से पड़ा है, मैंने कहा पहले में 20,000 पड़ा है, तो बस और कितना क्रिएट कर लो इस बार? सर 20,000 और क्रिएट कर लो, 20,000 और कर निकालो पीएल से। तो एंट्री इस बार 40 से नहीं 20 से होगी। पर नहीं, अभी सुनो और सुनो, पूरी बातें खत्म नहीं करी मैंने कहा ये 20 भी गलत है। मैंने कहा ये 20 भी गलत है। कॉन्सेप्ट को समझो। मैंने कहा अगर प्रोविजन में बैलेंस पड़ा है तो प्रोविजन निकाला क्यों था? मुझे बता दो सर, आज मुझे बता दो। मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अब वो बैलेंस मैंने प्रोविजन में ट्रांसफर किया। मेरे भाई एक पर्सन ने मुझसे कहा कि मैं पैसा दूंगा 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 दूंगा, मैंने बाद में कहा चल देता रहेगा। अब मैं इसको लॉस मान लेता हूं, क्योंकि मैंने क्या करा, ये साला देगा नहीं देगा हरामी। तो मैंने क्या करा भाई, अब मैंने उस प्रॉफिट में से 20,000 रुपए निकाल रखे, पैसे से सेव कर रखे हैं कि फ्यूचर में अगर मुझे लॉस हो जाएगा। इस प्रोविजन का मतलब क्या है? मैंने भाई बताना, इस प्रोविजन का मतलब क्या है कि फ्यूचर में अगर मुझे लॉस हो जाए ना, कि अगर फ्यूचर में मुझे लॉस हो जाए, फ्यूचर में अगर मुझे लॉस हो जाए मेरे दोस्तों, तो इस लॉस को रिकवर कर सकूं फ्यूचर में। एक्चुअल प्रोविजन का मतलब एक्चुअल बैटअप है यार, होगा बैटअप फ्यूचर में, तब रिकवर करूंगा सब जो होगा। अब क्लियर सब। एक पर्सन ने मुझे कहा कि भाई मैं बाद में दूंगा पैसे, तो मैंने कहा ये देने वाला नहीं है, बैटअप करेगा मेरे फ्यूचर में, आज लॉस मान लो। लॉस मारने का मतलब क्या है? मैंने 20,000 रुपए अपने प्रॉफिट का निकाला और सेव करके रख 20,000 रुपए रख लिया। अब फ्यूचर में वो बंदा आया, कहा कि देखो मेरा बैटअप एक्चुअल में उसने कर दिया। टोटल बैटअप कितना कर दिया? मैंने कहा टोटल मेरा हो गया 16,000 का बैटअप। कितने का हो गया टोटल बैटअप? मैंने कितना कर दिया सर? 16,000 का टोटल बैटअप। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, टोटल बैटअप कितना का हो गया? 16,000 का। और मुझे उसने 4,000 रुपए दे दिए। मुझे कितना दे दिया मेरे दोस्तों? मान लेते हैं टोटल 16,000 का बैटअप हुआ। टोटल मेरे पूरे डेटर में से मुझे लग रहा था कि 20,000 का डेटर, ये प्रोविजन जब मैंने बनाया था तो मुझे लगा कि 20,000 रुपए नहीं आएगा। मैंने जब ये डेटर बनाया था तो मुझे क्या लगा? 20,000 रुपए नहीं आएगा। तो मैंने कहा सर 20,000 रुपए का बैटअप हो सकता है फ्यूचर के अंदर, ठीक है, पर एक्चुअल में बैटअप कितना हुआ? 16 का। एक्चुअल में बैटअप कितने का हुआ? 16 का। ध्यान समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। बस ये बात अगर मैंने समझा दी ना तो भैया बस सबसे खतरनाक और सबसे मस्त। इसका मतलब क्या है? लग रहा था कि 20,000 का बैटअप होगा तभी प्रोविजन बनाया है ना, यही मतलब है। बैटअप होगा, लग रहा था कि 20,000 का बैटअप होगा, ठीक है, लग रहा था 20,000 का। पर एक्चुअली में बैटअप तो 16 का ही हुआ। एक्चुअली में बैटअप कितने का हुआ? 16 का। अच्छा, जो 16 का बैटअप हुआ, क्या मैं उसको यहां से रिकवर नहीं करूंगा मेरे भाई? क्या मैंने ये 20,000 रुपए किस लिए बनाया था? फ्यूचर में बैटअप होगा तो रिकवर करने के लिए। अभी जब 16,000 रुपए जब मैं रिकवर कर लूंगा इस प्रोविजन, जो 20, देखो 20,000 रुपए मैंने बनाया इसलिए था कि फ्यूचर में अगर बैटअप होगा तो रिकवर कर लूंगा, और फ्यूचर में बैटअप हो गया, पर 20 का ना होकर कम का हो गया, 16 का हो गया। तो सर 16 का हो गया तो क्या करूंगा अब मैं? ये 20,000 में से 16 माइनस कर दूंगा, तो रिमेनिंग अब मेरे प्रोविजन कितना बच जाएगा? रिमेनिंग कितना बच जाएगा? रिमेनिंग प्रोविजन बता दो सर, मेरी बात को ध्यान समझना। रिमेनिंग प्रोविजन कितना बच जाएगा? सर सिर्फ 4,000 नहीं बच जाएगा? मेरे को बताओ। मैंने 20,000 रुपए रखा और ये सोच कर कि फ्यूचर में 20,000 का बैटअप हो जाएगा, मैंने 20,000 रुपए बचा लिया। एक्चुअल में फ्यूचर में 16 का बैटअप हुआ, मैंने यहां से हटा दिया, तो बच कितना गया प्रोविजन अभी हाथ में? 4 का। ऐसे भी हो सकता था कि 20,000 का प्रोविजन है, 20 का बैटअप हो जाए तो कुछ नहीं बचता। ऐसे भी हो सकता है कि 20 का प्रोविजन हो कि 22 का बैटअप हो जाए, तो फिर क्या बचता? फिर मैं जो बाकी 20 तो मैं प्रोविजन से क्रिएट कर लेता, और बाकी जो रिमेनिंग बच जाता उसको मैं फर्दर पीएल से क्रिएट कर देता, है ना। मैंने कहा चलो मान लेते हैं मैंने प्रोविजन कितना मेंटेन करा। ये देखो मैं आपको और क्लियर समझाने जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं क्लास बड़ी होगी, मुझे पता है टाइम लगेगा भाई इसको समझाने के लिए, और आपको देना पड़ेगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। प्रोविजन अगर 20 का हुआ, प्रोविजन में कितने का है? 20 का। बैटअप मैंने चेंज कर दिया, बैटअप मान लो 16 का हुआ, तो रिमेनिंग कितना बच गया मेरे प्रोविजन? तो रिमेनिंग प्रोविजन कितना बच गया दोस्तों? रिमेनिंग प्रोविजन सर 4,000 बचा।
ये मेरे प्रोविजन अकाउंट पड़ा हुआ है बैलेंस, अभी मैं और 4,000 का बैड डेब्ट रिकवर कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने कहा अगर प्रोविजन 20 का हुआ और सर 20 का ही बैड डेब्ट हो गया तो रिमेनिंग कितना बच गया सर, नील, नील बच गया। अगर मेरा प्रोविजन 20 का है और बैड डेब्ट मेरा हो गया 25,000 रुपए का, तो बताओ रिमेनिंग कितना बच गया, रिमेनिंग प्रोविजन तो कुछ नहीं बचा, पर एक्स्ट्रा बैड डेब्ट हो गया। तो जो एक्स्ट्रा बैड डेब्ट हुआ है ना, एक्स्ट्रा बैड डेब्ट, उसको हम कहां डाल देंगे, बाकी 20,000 के प्रोविजन, तो 20,000 का जो बैड डेब्ट होगा तो प्रोविजन से रिकवर करेंगे, जो एक्स्ट्रा बैड डेब्ट होगा उसको हम प्रोविजन नहीं पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। दोस्तों क्या बात समझ में आ रही नहीं आ रही, जो एक्स्ट्रा बैड डेब्ट होगा ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, एक्स्ट्रा बैड डेब्ट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, एक्स्ट्रा बैड डेब्ट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। अब आप समझो कि मेरा जो बैलेंस अगर पहले से पड़ा है, ध्यान समझना, ये 20,000 पहले से बैलेंस पड़ा है, क्यों रखा है मैंने, कि फ्यूचर में अगर मेरे को बैड डेब्ट हुआ तो वो बैड डेब्ट मैं यहां से रिकवर कर सकूं। इसलिए फ्यूचर में जो मेरे को बैड डेब्ट हुआ 6 और 10 का, तो 16 का टोटल बैड डेब्ट हो गया। इसलिए 16 का बैड डेब्ट मैं प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दूं, या अभी मेरे प्रोविजन पहले से बैलेंस पड़ा हुआ है, सर प्रोविजन में पैसा बचा हुआ है तो वहां से रिकवर करो, अगर नहीं बचता तो पीएल में ट्रांसफर करके। आई बात समझ में नहीं आई, मैं अभी और क्लियर करूंगा इसको और समझाऊंगा, पर अभी ये समझ में आया नहीं आया। अगर 20,000 पे है, मेरे पहले से बैलेंस पड़ा है, बैलेंस पड़ने का मतलब क्या है, 20,000 तक मैं रिकवर कर सकता हूँ बैड डेब्ट को, मेरा 16 का ही हुआ तो रिकवर कर दूंगा ना। बट अगर 16 का ना होकर क्या होता, ये 25 का होता, तो मैं यहां पर क्या डालता, यहां पर समझा रहा हूं, अभी करना नहीं है, ठीक है, समझा रहा हूं। 25 का बैड डेब्ट होता, मान लो टोटल में कितना होता, 25 होता, ये क्या होता सर 25 होता, तो पहले तो क्या होता, 20 तो मैं प्रोविजन में डालता और बाकी 5 कहां डाल देता, पीएल अकाउंट के अंदर डाल देता, बस सिंपल ये एंट्री पास करनी थी। क्योंकि प्रोविजन में कितना रिकवर कर सकता हूं बैलेंस का, 20,000 का बैलेंस है, 20,000 पैसा पड़ा है, प्रोविजन का नाम का मैं वहां से रिकवर कर लूंगा, तो बात क्लियर है नहीं है। अगर सिर्फ 20,000 का होता तो मैं इसमें पीएल में डालता। तो दोस्तों ये बात अब आपको क्लियर हो गई कि क्यों बैड डेब्ट हमने प्रोविजन में डाला। जब प्रोविजन में पहले से कुछ बैलेंस पड़ा है तो समझ लेना वो बैड डेब्ट को रिकवर के लिए ही रखा गया है। तो 16 का बैड डेब्ट है, तो जैसे 16 का बैड डेब्ट है, क्या मैं इसको अपने प्रोविजन और जो पहले से मेरे पास ओल्ड प्रोविजन पहले से पड़ा है उससे रिकवर कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं, तो कर देना, सारा का सारा ट्रांसफर कर देना प्रोविजन में। अगर 20,000 तक रिकवर कर लेना, अगर उससे ज्यादा हुआ तो जितना ज्यादा हुआ उतना पीएल में भेजना, बाकी सबको अभी प्रोविजन में भेजना। तो वही मैंने समझाया, 20-25 हुआ तो 20 तो प्रोविजन पर भेजना और बाकी 5 पीएल में ट्रांसफर करना। क्या क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब क्लियर है। अब सर मैं क्यों बैड डेब्ट को प्रोविजन में डाला, अगर बैलेंस पड़ा हो तो? बिल्कुल सही, अब क्लियर हुआ। अगर बैड डेब्ट के अंदर प्रोविजन में, अगर प्रोविजन पहले से ओल्ड प्रोविजन है तो समझ लेना बैड डेब्ट कहां जाएगा, प्रोविजन। और ये देख लेना, कंडीशन देख लेना कि अगर प्रोविजन के अंदर 20,000 पड़ा हुआ है और बैड डेब्ट उससे कम है तो पूरा डाल देना, अगर उसके बराबर है तब भी पूरा, उससे ज्यादा है तो जितना आपका प्रोविजन है उतना तो उसमें डाल देना, बाकी जितना ज्यादा उसको पीएल में ट्रांसफर कर देना। अब मुझे पता क्लियर हो चुका। अब आपको पता चलेगा कि बैड डेब्ट क्यों मैंने प्रोविजन में भेजा और क्यों कह रहा था मैं बैलेंस पड़ा है, बैलेंस होगा तो वहां भेजना, क्योंकि बैलेंस क्या है, ज्यादा है बैड डेब्ट से। जब ज्यादा होगा तो क्या होगा, बैड डेब्ट में प्रोविजन में ट्रांसफर कर देना बैड डेब्ट को, यहाँ पीएल में नहीं आएगा। कब आएगा, जब ये ओल्ड प्रोविजन क्वेश्चन के अंदर नहीं होगा। और मेरे ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर अगर आप देखो, जो मैंने ये एग्जांपल कराया था, यहाँ पर कोई भी, ये न्यू प्रोविजन है, कोई भी ओल्ड प्रोविजन नहीं है। तो जो फर्दर बैठा हुआ 20 का, उसको मैंने पीएल में ट्रांसफर करा, और बिल्कुल टीएल में ट्रांसफर करता। क्यों मैंने टीएल में ट्रांसफर करा, क्योंकि मेरे पे ओल्ड प्रोविजन पहले से नहीं था रिकवर करने के लिए। अगर मेरे 20 का प्रोविजन पहले से पड़ा होता तो मैं पीएल की जगह प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट डालता। दोस्तों दैट इज द लॉजिक, यही लॉजिक है प्रोविजन। अगर आपने डिटेल में पढ़ना है सर, यही तरीका है डिटेल में पढ़ने का, तो ये एक डेबिट पोस्टिंग मैंने यहाँ पर कर दी। अब आपको क्लियर हो गया। अब आपको बिल्कुल ध्यान से सुना होगा, मैं आपको और अगले क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा इसके भी पर यह बात आपको क्लियर हो गई है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, बैड डेब्ट का बैलेंस प्रोविजन में कब ट्रांसफर होगा, जब ओल्ड प्रोविजन पड़ा हो, और जितना पड़ा हो उतना ट्रांसफर हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा, बाकी जो और ज्यादा हो गया उसको पीएल में दे देंगे। क्लियर? अब मेरे को समझाओ कि मैंने तो यहां पर 20 था और 16 डालकर अब मेरा बैलेंस कितना बच गया, बताओ? 4 नहीं रह गया क्या? अब मेरे पे प्रोविजन कितना का रह गया रिमेनिंग? 4 का नहीं बच गया, क्योंकि 16 तो रिकवर कर लिया। तो अगर मुझे 40 का प्रोविजन बनाना है टोटल, और 4 मेरे बैलेंस पड़ा है, तो इस साल और कितना बनाऊं? 36,000। इस साल और कितना बनाऊं दोस्तों? 36,000। तो मुझे प्रोविजन न्यू कितना बनाना पड़ेगा? पूरा 40 रखना है। तो पहले से मेरे पे कितना है दोस्तों, यहां देखो, मैंने कहा यहां पर बना 2 न्यू प्रोविजन। यहां कितना बनाया दोस्तों? 2 बैलेंस शीट, सॉरी यहां पर बैलेंस शीट आएगा 2 बैलेंस शीट। मेरे पे टोटल साल के एंड में कितने का प्रोविजन होना चाहिए? 2 बैलेंस शीट। साल के एंड में सर 40 का प्रोविजन होना चाहिए आपके पास। साल के एंड में ध्यान रखना 40 का प्रोविजन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एंड टोटल प्रोविजन एट द एंड मेरे को कितना होना चाहिए कि अभी 40 का प्रोविजन बचा होना चाहिए, जो अगले साल कैरी फॉरवर्ड करूंगा, जो ओल्ड बनेगा अगले साल। आ रही बात समझ में कि पहले से बचा हुआ है।
और अगले साल अगर बैटअप हुआ तो सेम प्रोसेस, जितना बैटअप हुआ देखो 40,000 क्या बैलेंस शीट हो गया, अगले साल यहाँ बनेगा तो ये मेरा ओल्ड प्रोविजन बन जाएगा। आप समझ में क्यों आएगा ओल्ड प्रोविजन? ये ओल्ड प्रोविजन इसका मतलब पिछले साल बनाया हुआ था वो इस साल ट्रांसफर हुआ है, दैट इज कैरी फॉरवर्ड कंसेप्ट। पिछले साल का जो प्रोविजन बनाया था 40,000 का, अगले साल ट्रांसफर होगा, जब अगले साल करूंगा तो यहाँ 20 से 40 आ जाएगा। और अगर बैटअप 40 से कम हुआ तो पूरा ट्रांसफर, 40 से ज्यादा हुआ तो 40 तक ट्रांसफर, बाकी ज्यादा पेयर में ट्रांसफर। क्लियर? तो मुझे 40 का बनाना है मेरे दोस्तों। तो ये अगर आपको समझ में नहीं आया ना, प्रोविजन कितना न्यू बनेगा, कितना इस साल और बनेगा, न्यू प्रोविजन कितना मेंटेन होगा, वो कैसा होगा? पहले देखो ओल्ड प्रोविजन कितने का है, फिर देखो कि बैटअप कितने का, वो फर्दर बैटअप माइनस कर दो। अगर बैलेंस बच जाएगा तो उस बैलेंस में से जितना आपको टोटल बनाना है 40, जो बच गया उतना रिमेनिंग और बना देना, 36,000 और बन जाएगा दोस्तों। ये कैसे निकाला था? वर्किंग नोट में निकाला था। देखो यह है कंसेप्ट। ये होगा 56,000। मुझे पता है टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, पर रुक जाओ सर, थोड़ा सा रुक जाओ बस। आप ये समझ में आया? ये जाएगा सर, ये नया प्रोविजन बनेगा और सर ये पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और मैं यारी एंट्री अब यहाँ से काट रहा हूं और ये एंट्री अब मैं यहां से काटकर 40 का नहीं 36,000 का प्रोविजन बनेगा। काट कर करना, काट कर पहले 40 लिखना फिर 36। याद रहेगा इससे कि 40 का नहीं बनेगा। पहले कैसे करना है, ये मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं 2 बड़ा बड़ा और समझाने वाला हूं मैं यहाँ पर आपको कि मेरे पे ओल्ड प्रोविजन पड़ा था। वर्किंग नोट नंबर 2 बना रहा हूं और मैं कहता हूं ओल्ड प्रोविजन कितने का पड़ा था मेरे पे? 20 का। पिछले साल का प्रोविजन कितना बचा है मेरा? कैरी फॉरवर्ड 20,000 बचा हुआ है, जिसमें से मैंने क्या करा, टोटल बैटअप माइनस करा, टोटल बैटअप जो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर भी हो और एडिशन, टोटल जितना है टोटल बैटअप। कौन कौन सा? एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला और ट्रायल बैलेंस वाला, दोनों टोटल करना। और टोटल यहाँ पर था 16,000 पे माइनस कर देना। टोटल रिकवरी कर ली, अभी भी कितना रिमेनिंग बच गया प्रोविजन में? रिमेनिंग प्रोविजन बच गया, रिमेनिंग प्रोविजन कितना बच गया दोस्तों? ऐसी करना निकालते वक्त रिमेनिंग, हमेशा ऐसी करोगे आप, हमेशा ऐसी करोगे। और रिमेनिंग और टोटल प्रोविजन कितना मेंटेन करना है? मेंटेन्ड प्रोविजन, मेंटेन कितना करना है? यहाँ ये नहीं कह रहा और बनाओ, यहाँ कह रहा है मेंटेन करो, इतने का बनाओ। मेंटेन करना है प्रोविजन कितने का? 40,000 का। और पहले से कितना है? 36। तो न्यू प्रोविजन इस साल कितने का बनेगा? न्यू प्रोविजन बनेगा पीएल अकाउंट से। पीएल अकाउंट से कितना पैसा निकाला जाएगा न्यू प्रोविजन के नाम पे? सिर्फ 40 या 36, सिर्फ 36,000 निकाला जाएगा और प्रोविजन ऑटोमेटिकली 40 हो जाएगा, क्योंकि 4,000 पहले से है। आई बात समझ में? नहीं आई? तो ये होगा बैलेंसिंग फिगर। ये कैसा आएगा दोस्तों? बैलेंसिंग फिगर आएगा। 40 में से 4 माइनस करेंगे तब आएगा। क्लियर? हमेशा ऐसा बनाओगे? हाँ बस। अब इसका मेरे को ट्रीटमेंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहाँ कराया? तो अकाउंटिंग बनाया है, बस लास्ट अकाउंटिंग में अगली क्लास में करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सर यहाँ लिखेंगे 2 तरीके है सर करने के, 2 तरीके। सबसे पहले लिखो 2 बैटअप, ये तो ट्रायल बैलेंस वाला बैटअप है 10,000 तो 6,000 था, ये पूरा लॉस है। और फर्दर बैटअप के डबल इफेक्ट होंगे। फर्दर बैटअप, ये फर्दर बैटअप है जिसके डबल इफेक्ट होंगे डिसइंफॉर्मेशन का। फर्दर बैटअप 10,000 रुपए का, तो टोटल कितना हो गया? 16,000 का लॉस हो गया। ये 16 का 16 मैंने रिकवर कर लिया अपने प्रोविजन अकाउंट से, क्योंकि पहले से पड़ा था बैलेंस। अच्छा, इसके बाद आप क्या करना है? यहाँ पर यहाँ लिखना 2 न्यू प्रोविजन। यहाँ क्या लिखना है? 2 न्यू प्रोविजन। कितने का न्यू प्रोविजन है? पूरा 40 डाल देना दोस्तों। सॉरी, न्यू प्रोविजन 36 का बनाया था। 2 न्यू प्रोविजन 36,000। समझ में आ गया कैसे निकाला 37? और यहाँ लिख देना बाय ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन लिख देना यहाँ पर। कितना सर? यहाँ पर लिख देना ओल्ड प्रोविजन सर 20,000। सर मेरा कॉन्सेप्ट और बुक का कॉन्सेप्ट डिफर करेगा, पर आंसर जरूर मैच करेगा। बुक में ऐसा नहीं कराते, मेरा अकेला कंसेप्ट है। मैं क्या करता हूँ, अलग अलग ट्रांसफर कर देता हूँ। ओल्ड को क्रेडिट था, क्रेडिट में भेज दिया, और न्यू जो डेबिट में नया प्रोविजन क्रिएट करना है, ये वर्किंग नोट में बना लूंगा मैं। वर्किंग नोट नंबर 2 से न्यू क्रिएट कर लूंगा। क्लियर है या नहीं है? ऐसा। पर बुक में काफी कभी अब आना अलग अलग होता है। पर मैं अगर टोटल करके दिखाऊं ना आपको, टोटल करके दिखाऊं तो मेरा टोटल आपके पास देखना वही आएगा नेट। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ बाई चांस मैंने यहाँ पर लेट सपोज लेट कर लिया, लेट प्रॉफिट जीपी मान लिया 3 लाख रुपए का, 3 लाख का जीपी मान लिया, तो मेरा कितना होगा? लेट करा है, लेट ये है लेट, ठीक है, लेट जीपी माना है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, मैं बस समझाना चाहता हूँ। ये अगर 3,20,000 रुपए का और 3,20,000 का यहाँ आ गया, तो यहाँ पर 2 एनपी कितना आ जाएगा? 2 नेट प्रॉफिट। 2 नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? देखो माइनस करेंगे 3,20,000 में से आपके पास 3,20,000 में से। मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ, जोन सा आपको अच्छा लगे वो कर लेना भाई। 16,000 माइनस कर दो और न्यू प्रोविजन 36,000 बनाया था वो माइनस कर दो, 2,60,000 आ जाएगा। एक तो ये तरीका है जो मैं यूज करता हूँ, ज्यादातर मुझे सैंपल लगता है, क्योंकि ये तो मैंने पहले सिखा दिया था आपको। ये डिफरेंट है। न्यू को आप न्यू निकालना आ गया आपको, न्यू आपको डेबिट में डालना, ओल्ड आपको क्रेडिट में डालना, खत्म कहानी। बट क्वेश्चन में क्या करता है, कभी कभी ना आपके बुक्स में आपको ऐसा गिवन होगा
और इससे ज्यादा और कुछ गिवन नहीं होगा, ऐसे गिवन होगा। क्रेडिट साइड में कुछ नहीं भेजेंगे, सब ट्रीटमेंट डेबिट साइड में कर देंगे। कहेंगे देखो पहले लिखेंगे बैड डेट, बोलेंगे भाई 6000 का बैड डेट था, इसमें ऐड करेंगे फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट पूरा लिख लेना जरा, फर्दर बैड डेट 10,000 का, टोटल कितना हो गया 16,000 का। इसमें ऐड करेंगे न्यू प्रोविजन, ऐड करेंगे न्यू प्रोविजन, कितना सर न्यू प्रोविजन कितने का है, न्यू प्रोविजन 36,000 रुपए का ऐड करा। इसमें माइनस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन, इसमें माइनस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन, तब भी आंसर सेम ही आना है 20,000 रुपए। माइनस कर देंगे, जो भी आएगा बाहर डाल देंगे। और मैं अगर मैंने लेट सपोज मान लिया जीपी मेरा कितना था, लेट करा, लेट जीपी मेरा कितना मैंने मारा था ऊपर 3 लाख रुपए। अब देखना टोटल आंसर कर लो, तब भी 3 लाख ही आएगा भाई। तो यहाँ लिख देंगे 2 NP। तो मैंने कहा चलो 3 लाख में से पहले तो ये टोटल करता हूँ, 16,000 प्लस 36,000 और माइनस 20,000, तो आगे 32,000। तो ये इसका टोटल आया 32,000। और 32,000 3 लाख में से 3 लाख में से 32,000 जाएगा, 2,68,000 बच जाएगा दोस्तों। ऊपर क्या बचा था 2,68,000। देख लो सर सेम तरीका, पर मुझे तो मेरा तरीका बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें सिंपल, ये कहानी पेलनी नहीं होती, रटते हैं बच्चे इसको। मैं तो सिंपल आपको बता दे, देखो ओल्ड प्रोविजन क्रेडिट साइड में होता है क्रेडिट कर दो, न्यू प्रोविजन बनाया तो पीएल अकाउंट का डेबिट साइड में बनाया होगा तो डेबिट कर दो। सिंपल लॉजिक, सिर्फ ये अप्लाई करो। आप ये अप्लाई करें मेथड, बिल्कुल आपका 100% नंबर आएंगे, ऐसा गारंटी कह रहा हूं मैं, ऐसा गारंटी है 100%। ये बुक का मेथड है, ये बुक ज्यादातर बुक ये फॉलो करती है, पर मुझे मजा नहीं आता इसमें। क्यों, सारी एक ही ट्रीटमेंट। मैंने कहा सिंपल है, ट्रायल बैलेंस में ओल्ड प्रोविजन क्रेडिट में तो क्रेडिट कर दो पीएल में। नया प्रोविजन बनाते टाइम हमको सिखाते कैसे निकालना, नेट निकाल अमाउंट निकालोगे, जब निकालोगे तो क्या एंट्री होती है पीएल टू न्यू प्रोविजन, तो पीएल में डेबिट कर देना, बट डेबिट एंट्री आती है आपको। और बैलेंस में क्या एंट्री होगी, बैलेंस शीट में एंट्री क्या होगी मेरे दोस्तों, देखो पहले लिखेंगे डेटर, बताओ बैलेंस शीट में कितना माइनस होगा सर 40,000 प्रोविजन। ये मत 36 मत कर देना भाई, ये गलती मत कर देना, 36 मत कर देना। क्लोजिंग कितना था प्रोविजन का, नेट प्रोविजन अभी वो तो मैंने 36 बनाया है, टोटल प्रोविजन कितने का है 40 का है ना दोस्तों, 36 बनाया है इस साल। टोटल तो 40 प्रोविजन बनाना था 40 का, पर 4 पहले से बढ़ा 36 और बनाया है, बनाने के लिए पीएल में से निकाला है, पर पहले तो पहला पैसा मेरे पे पूरा तो कितना था सर, इधर 4,10,000 का था, ठीक है, ये था 4,10 का। और इसमें माइनस कर देंगे क्या फर्दर बैड डेट, क्योंकि वाला बैड डेट माइनस नहीं करेंगे, सिर्फ 10,000 वाला माइनस कर देंगे। और क्या माइनस कर देंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और प्रोविजन कितना माइनस करेंगे, जितना क्लोजिंग है, कितना टोटल मेंटेन करना था प्रोविजन फॉर डीडी। अब मुझे कितने का लग रहा है कि कितने का और हो जाएगा मेरे पे, 40,000 का लग जाएगा, 40,000 का माइनस कर दिया, तो यहाँ पर बाहर क्या आएगा 3,60,000, 3.6 लाख। एंड ऑफ द कंसेप्ट। और इससे ज्यादा कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। और मैं आपको पढ़ा देता हूं जो मैं ऊपर लिखवाया था, और मैं आपको समझाता हूं कि मैंने जो चीज पढ़ाई थी वही चीज मैंने एंड ऑफ द क्लास में आपको बता दिया। अगली क्लास में और क्वेश्चन करेंगे और बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, बट अभी के लिए इतना ही, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो चुकी है। मैंने यहां तक पढ़ाया था, यहां देखना, द अमाउंट प्रोविजन इज कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। पिछले साल जो अभी 40,000 बच गया था ना, अभी वो क्या करेंगे, अगले साल ट्रांसफर करेंगे, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। एंड नेक्स्ट ईयर व्हेन द डेट एक्चुअली बैड डेट, जब डेट जो होंगे, डेटर जो होंगे एक्चुअली बैड डेट हो जाएगा, आर रिटर्न ऑफ। और कैसे भाई 40,000 रुपए मैंने अगले साल भेजा और मेरा अगले साल बैड डेट हो गया 30,000 रुपए का, तो क्या करूंगा, प्रोविजन में ट्रांसफर कर दूंगा, बैड डेट इज डेबिटेड टू द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्या क्लियर है या नहीं है, बताओ क्या बात क्लियर है या नहीं है। क्या यहाँ पर लिखा मैंने पीएल नहीं, क्योंकि जो पैसा मैंने कैरी फॉरवर्ड करा था नेक्स्ट ईयर, अगर नेक्स्ट ईयर उससे ज्यादा हो जाए दोस्तों, अगर नेक्स्ट ईयर उससे ज्यादा हो जाए तब जाकर, अगर 40 का मेरा अगले साल का, अगर बैड डेट 50 का हो जाए तब जाकर मैं क्या करूंगा, तब जाकर मैं क्या करूंगा सर 40 यहां डाल दूंगा प्रोविजन, और बाकी जो ज्यादा होगा। पर ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, आगे तो वैल्यू बता दिया पर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि प्रोविजन एस्टिमेट बेसिस पे होता है, हमेशा ज्यादा लिया करते हैं प्रोविजन, एस्टिमेशन हमेशा ज्यादा का लगा करते हैं, कम का नहीं। हो सकता है होने को तो कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो होगा तो मैंने आपको बता दिया। जितना प्रोविजन है उतना ट्रांसफर कर दो प्रोविजन, बाकी सब पेमेंट में ट्रांसफर करते। अमाउंट ऑफ बैड डेट इज नॉट डेबिटेड टू द पीएल अकाउंट सिंस इट वाज ऑलरेडी डेबिटेड टू अर्लियर ईयर। 40,000 का पीएल अकाउंट में बैड डेट को पीएल में ट्रांसफर नहीं करेंगे, प्रोविजन में क्यों भेजेंगे, क्यों भेजेंगे प्रोविजन में, क्योंकि वो 40,000 रुपए जो ऊपर था ना, वो 40,000 मेरा जो अभी आएगा, ये जो 20,000 रुपए था ये पिछले साल हो चुका होगा डेबिट, तो कर तो दिया, अभी 16,000 अलग से करूं सर, इसमें से रिकवर कर लेता हूं, तो निकालने का मतलब भी तो यही हुआ। 20,000 मैंने प्रोविजन में अकाउंट पीएल अकाउंट में डाला, और पीएल में डालने से मैंने प्रॉफिट निकाल लिया 20,000 रुपए का, और क्या कहा फ्यूचर में लॉस होगा, ये आज ही मान लेता हूँ। फ्यूचर ये 16,000 फ्यूचर में लॉस हो गया, अब ये लॉस को मैं दोबारा पीएल में ट्रांसफर करूं, नहीं दोस्तों। अगर आपने दोबारा पीएल में ट्रांसफर कर दिया, मतलब इन द सेंस पीएल में तो भेजेंगे, पीएल में तो भेजेंगे दोस्तों, पर प्रोविजन के साथ भी आएगा, नेट इफेक्ट होकर ना खत्म हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको, नॉर्मल है, कुछ ज्यादा बात नहीं ध्यान रखनी, आपको सिंपल ये करना है कि जो ये आपके पास बैटअप होगा, इसको हम पीएल में ट्रांसफर तो करते हैं मेरे दोस्तों, इसको हम पीएल में ट्रांसफर तो करते हैं। और यहाँ पर अब जब हम पीएल में ट्रांसफर करा था इसको,
कहां करा था, यहां पर ये 16,000 रुपए जब हम पीएल में इसको ट्रांसफर करा तो इसका मतलब यहाँ पर न्यू प्रोविजन और ओल्ड प्रोविजन भी माइनस करा गया था, यहाँ पर हटाया गया था। देखो न्यू प्रोविजन मैंने वापस इनकम मान ली तब जाकर डाला यहाँ पर, समझे आप। बेटा पीएल में आएगा वो तो ऑब्वियस ही बात है, पर न्यू ओल्ड प्रोविजन जो पिछले साल लॉस मान लिया था, डेबिट कर था, उसको इनकम भी तो मान ली। अगर वो पिछले साल अभी भी डेबिट है, देखो यहाँ पर इस तरीके में मैंने क्या करा, जो पिछले साल 20,000 का लॉस माना था उसको मैंने निकाल दिया। तो वो कह रहा है, देखो ये लाइन यहाँ पर जो लिखी है बुक में, ये लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब समझे सर, कि नॉट डेबिटेड का मतलब समझे, डेबिट नहीं होगा। नॉट डेबिटेड का मतलब ये नहीं कि बेटर डेबिट नहीं होगा, नॉट डेबिटेड का मतलब है बेटर तो जाएगा, बेटर तो जाएगा, इंटरेस्ट दो। और जो पिछले साल मैंने प्रोविजन का निकाला था, डेबिट करा था, बेटर मान कर अगले साल होगा डाल दिया था, उसको मैं इनकम मान लूंगा, या तो उसको डेबिट साइड हटा दूंगा जब हटाऊंगा, क्योंकि जब पीएनएल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में 20,000 डाले और 16 का अगले साल लॉस हो गया, तो वो लॉस तो 20,000 डल चुका है ना ऑलरेडी, तो क्यों डालूंगा बार बार, और डालूंगा। और कब डालूंगा, जब 20,000 यहाँ से इनकम मान लूंगा और तब डालूंगा, क्योंकि देखो मैंने क्या लिखा था वहां पर, ओल्ड प्रोविजन को क्रेडिट करा था, वो 20,000 जो पिछला डेबिट कर दिया था, अब उसको क्रेडिट करके इनकम मान लो, पिछला लॉस मान लिया, क्रेडिट करके इनकम मान लो, और जो इस साल नया लॉस हुआ उसको डेबिट कर दो। ये तरीका फॉलो कर सकते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है सर, 6 लेवल एंट्री होगा। आई बात समझ में नहीं आई। और लास्ट आपके एंट्री क्या होगी, एक बार दोबारा बताना चाहता हूं आपके पास, मैंने इस साल मान लेते इस साल मैंने 20,000 का मैंने पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में डाला प्रोविजन, ठीक है, 20,000 का लॉस हो गया। ये लॉस कब होगा, आज या फ्यूचर में, फ्यूचर में कितने का लॉस हुआ, 16 का, तो फ्यूचर में वो 16 का लॉस भी अगर डेबिट कर दूं और ये भी मैंने डेबिट कर दिया तो गलती हो जाएगा। 16 इसी ये जो 20,000 डाला ये फ्यूचर के लॉस के लिए तो डाला था, फ्यूचर में 16,000 का लॉस हुआ और यह भी 20,000 डाला, फ्यूचर में भी डेबिट कर दिया 20,000 पे, 16,000 पे, तो सर क्या डबल बार डेबिट नहीं होगा, 36 नहीं होगा, एक तो प्रोविजन के नाम से डेबिट करा 20,000 पे और फिर बैड डेब के नाम से, फिर क्या करना, वो 16,000 पे पीएनएल में ट्रांसफर कर देना 16,000 और ये 20,000 पे डेबिट कर दिया, इसको कैंसिल कर देना, माइनस कर देना डेबिट में, या आप पीएनएल के क्रेडिट साइड में डाल देना। यही तो मैंने कराया। दो बुक में क्या करता है, बुक में मैंने मेरा तरीका क्या है, मेरा तरीका है कि मैं क्या कर दूं, मैं इनकम मान लूं, जो डेबिट कर दिया था उसको इनकम मान लो और 16 को फिर दोबारा डेबिट कर दो, बात सही है। 20,000 पे डाला, इसको निकाल लो और 16 डाल दो, या तो इसको 20,000 पे यहाँ पर 4,000, या तो क्या करना, यहाँ पर ये कर लेना कि यहाँ से जो 20,000 पे, या तो क्या करना इनकम मान लो या डेबिट में से कम कर दो, बात तो एक ही है। क्लियर, अब तो क्लियर है भाई। इतनी तो बहुत मेहनत करवाती दोस्तों, बहुत बड़ी क्लास हो गई है, मेरी हालत खराब हो गई भाई बोल बोल कर, नॉन स्टॉप बोले जा रहा हूं मैं। The provision for doubtful debt account is deducted from the amount of sundry debtor. Provision for doubtful debt sundry debtor के अमाउंट को डिडक्ट तो कर देगा, बट 2 सेपरेट अकाउंट आर मेंटेन, 2 सेपरेट अकाउंट बनेंगे, बैड डेब्ट का, प्रोविजन का, ठीक है। तो याद रखना, आज के बाद अगर प्रोविजन आता है एडवांस लेवल जो बता रहा हूँ, एडवांस लेवल में प्रोविजन अगर अलग से क्वेश्चन पूछेगा ना, तो वहां पर डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, बैड डेब्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रोविजन अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा, जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी, और यही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाने जाऊंगा। आज की क्लास में इतना, द एंड ऑफ द प्रोविजन खत्म हो जाएगा दोस्तों। इससे खतरनाक तरीका प्रोविजन सीखने का नहीं है, कहीं भी कोई भी चीज, कोई भी कहीं भी किसी भी जगह से पूछ लो, किसी भी जगह देख लो, यूट्यूब पे नहीं है, कोई इतने डिटेल में आपको नहीं कराने वाला, ठीक है, क्योंकि मेरा पर्पस रहता है कि जितनी नॉलेज मेरे दिमाग भैया सब दे दो भाई, सब ले जाओ, सब आपने जितना पैसा देना सब ले जाओ, नॉलेज सारी नॉलेज ले जाओ, बस दिक्कत यह है कि आपको याद नहीं रहती, बस दिक्कत ये है सर। मैं तो पूरी दे देता हूँ अपनी नॉलेज, एक एक चीज बता देता हूँ, पर आपको याद नहीं रहता। तो आज की क्लास में सर इतना ही करते हैं, आप भूलोगे तभी तो हमारे पास आओगे, तो भूलना आपका बनता है, ठीक है, जितना आप भूलोगे उतना हम कमाएंगे, मजाक कर रहा हूं। चलो तो सर रिटेन रखना पड़ेगा, और रिटेन रखने के लिए पता क्या होता है, मेरे को कैसे याद आता है मैं आपको बता देता हूँ, मैं बार बार पढ़ाता हूँ इसलिए मुझे याद रहता है, मैं बार बार पढ़ाता हूँ। देखो अगर मैं 3 साल 4 साल नहीं पढ़ाऊं तो मुझे सब भूल जाऊंगा भाई, क्या था कैसे था, ऑब्वियस ही बात है, ह्यूमन नेचर है भाई, भूलना हमारा बनता है। तो याद रखने के लिए ना आपको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। अगर आप रिवाइज नहीं करना चाहते, एटलीस्ट आधा घंटे बैठ के टाइम पास के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग करके देख लीजिए, सिंपल, ऐसे हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है, समझ में आ गई बात है, तो अच्छे से पढ़ते रहे। नेक्स्ट क्लास में इसके बाद तो बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले मेरे भाई, और क्लियरिटी कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में इतना खतरनाक तरीके से कंसेप्ट प्रोविजन आ जाएगा, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। थैंक यू मेरे दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय।